A very good morning to all the esteemed judicial officers from the state of Punjab, Haryana and UT Chandigarh. I welcome you all to today's session. This session is in continuation of the previous session on the topic bail, revisiting the law. Considering the overwhelming response from all of you in the form of questions or queries, we have the privilege that Sir Shri H.S. Bhangoo, learned senior faculty member, Chandigarh Judicial Academy, is again before us to further enlighten us on the topic. Sir will be taking up the queries one by one and will be addressing the same. Our efforts will be to take as many queries as possible in this session. If thereafter any query remain at all, that can be sent to Chandigarh Judicial Academy separately. Now, not taking much of your time, I, Karuna Sharma, faculty member, Chandigarh Judicial Academy, take this honor to introduce the speaker for the session. Shri H.S. Bhangoo, sir, joined as Additional District and Sessions Judge in Haryana in the year 1995 and retired as District and Sessions Judge on 30th April 2011. Sir has worked as Member Secretary, State Legal Services Authority, Haryana, for more than 2 years and have vast knowledge of alternate dispute mechanism. Sir has been training the judicial officers at Chandigarh Judicial Academy since then. We are privileged to have you with us, sir. Over to you, sir. Thank you so much. I welcome you on behalf of all the judicial officers. Thank you, Karuna. Thank you very much. So let us not waste time and let's start with the queries which we have received. So what is the first one? Right, sir. We have been waiting for this, sir. So the first question is default bail equal to regular bail or not? All right. So we have some questions regarding default bail. Right, sir. As far as whether default bail is equal to regular bail, Section 167 itself is clear. Section 167 says that every person released on bail under this subsection shall be deemed to be so released under the provisions of Chapter 33. उसी में लिखा हुआ है, clearly लिखा हुआ है. तो इसमें जब bail हो जाती है तो all the whatever is applicable to other bails is also applicable to this bail. So it is not on a different footing in any manner. सिर्फ जब bail दी जाती है तभी उसका consideration अलग है. Otherwise everything is same. अगर cancellation है वो भी same grounds पे ही होती है. So in all respects it's on the same footing. What's the next one? So the second question is, what is the appropriate forum for cancellation of default bail? Okay. तो ये इसी का continuation है, जैसे कि मैंने जैसे कहा पहले भी default bail है, ये it's on the same footing as other bails. तो cancellation अगर default bail की अगर आपने किसी ने करनी है या करानी है तो उसको भी वही देखना पड़ता है कि उसमें क्या क्या, जैसे दूसरी बेल्स कैंसिल होती हैं, जो उनके लिए ग्राउंड्स हैं वही ग्राउंड्स इसके लिए हैं. अब ये दो सिचुएशन हो सकती हैं डिफॉल्ट बेल की. अगर डिफॉल्ट बेल के बाद डिफॉल्ट बेल की क्या कोई भी कैंसिलेशन वाली उसमें दो सिचुएशन होती हैं. एक तो ये है कि आपने जिस कोर्ट ने उसको बेल दी है, एक तो एप्लीकेशन उसी कोर्ट में लगती है, एक एप्लीकेशन होती है जो सुपीरियर कोर्ट में लगती है. अब उसी कोर्ट में कौन सी एप्लीकेशन लगती है और सुपीरियर कोर्ट में कौन सी लगती है? उसी कोर्ट में तो एप्लीकेशन तब आएगी अगर बेल करने के बाद कोई सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस हैं ऐसे, जैसे कि इफ ही हैज मिसयूज्ड द कंसेशन ऑफ बेल, अगर उसने विटनेस को धमका दिया या इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर किया या एनी कोई भी कंडीशन है बेल की उसकी कॉन्ट्रावेंशन करता है, तो वो एक सब्सिक्वेंट इवेंट है जिसके ऊपर उसने जिस कोर्ट का वो ऑर्डर है उसका माइंड अप्लाई नहीं हुआ हुआ,
तो इसलिए वो एप्लीकेशन जो है अगर आपने कैंसिलेशन के लिए लगानी है तो वो आप उसी कोर्ट में लगाओ, सेम कोर्ट। पर अगर आपने उसको मेरिट पे चैलेंज करना है कि ये जो बेल दी गई है ये दी गलत गई है, ये दिस कुड नॉट हैव बीन ग्रांटेड, इफ you want to challenge it on merits, then you have to go to the superior court. तो इसमें कैंसिलेशन के प्रोविजन जो है वो सबको पता ही है कि दो प्रोविजंस हैं इसमें, 437 सबसेक्शन 5 और 439 सबसेक्शन 2। 437(5) मैजिस्ट्रेट्स के लिए, 439(2) सेशन कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट के लिए। तो उनमें एप्लीकेशन लाई करती है, मैजिस्ट्रेट ने अगर कर रखी है तो अगर मैजिस्ट्रेट के कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है तो वहीं लगाएंगे, अगर उसी ऑर्डर को हमने चैलेंज करना मेरिट पे तो देन यू गो टू द सेशन कोर्ट। तो दिस इज द फोरम। वो सेम है, दूसरी बेल्स को जैसे कैंसिल कराते हैं वैसे ही डिफॉल्ट बेल को कैंसिलेशन के लिए सेम। मैंने शायद लास्ट डेट पे ये भी बताया था कि एक दो जजमेंट्स ऐसी आ गई थी कि क्योंकि अब सब्सिक्वेंटली चलान आ जाता है तो इस बेसिस पे भी अब चलान आ गया इसलिए कैंसिल कर दी, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर डिफॉल्ट बेल किसी को दे दी आपने, यू कांट कैंसिल इट सो लाइटली, इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। तो उसमें वही ग्राउंड्स लेने पड़ेंगे, उतना ही आपको मटेरियल उसको देना पड़ेगा जिसने कैंसिल कराना। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? So next question is it incumbent upon the court to communicate the accused about the accrual of his right to default bail after expiry of the statutory period of detention under section 167 CRPC? हाँ, ये है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ये क्या कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या उसको बताना, भाई आपको ए राइट हैज अक्रूड इन योर फेवर, कि डिफॉल्ट बेल अगर आप कराना चाहें तो करवा सकते हैं। तो ये अब राकेश पॉल वाला जो केस था फुल बेंच, उसमें दो जजेस हैं, जस्टिस लोकूर और जस्टिस दीपक गुप्ता, उनकी कॉन्करिंग जजमेंट है, तीसरे मेंबर जो थे उनकी डिसेंटिंग थी। तो दोनों जो कॉन्करिंग जिनकी जजमेंट है जजेस, ऑनरेबल जजेस की, उन दोनों ने यही कहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जस्टिस लोकूर की उन्होंने जो वर्ड्स कहे हैं वो कहा भी इट वुड equally be the duty and responsibility of a court on coming to know that the accused person before it is entitled to default bail to at least apprise him or her of the indivisible right. ये उन्होंने कहा है, जस्टिस दीपक गुप्ता ने, in my view, the magistrate should also not encourage wrongful detention and must inform the accused of his right. In case the accused still does not want to exercise his right, then he shall remain in custody. But if he chooses to exercise his right and is willing to furnish bail, he must be enlarged on bail. तो ये मेरे ख्याल इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता कि जब ये फुल बेंच ने ये क्लियरली ये कह दिया कि ये कोर्ट की भी ड्यूटी है टू inform the accused. Okay, so I think that covers the question number 3, query number 3. So what next? So the next question is, where cases where application for furnishing bail bonds is filed. अच्छा, ये ओके एक मिनट, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। डिफॉल्ट बेल की हमने लास्ट वेबिनार में हमने 3 प्रोपोजिशन डिस्कस की थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसके बारे में मेरे ख्याल ये काफ़ी 6-7 क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर। सो देयर वाज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग इट। तो हमने ये उसमें वेबिनार में ये एक्सप्लेन किया था कि मान लीजिए 90 डेज आज पूरे हो गए तो कल एक्यूज जो है वो एप्लीकेशन लगा देते बेल के लिए, डिफॉल्ट बेल के 91st डे को ही मूव्स एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट बेल। और उसको मैं उनको भी डिस्कस कर रहा हूँ, फिर ये इन सिचुएशंस को भी कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम सिचुएशन डील की थी। सो उनको जस्ट टू गो थ्रू देम अगेन। उसमें हमने कहा था 91st डे को जैसे एक्यूज ने एप्लीकेशन लगा दी,
अब मान लीजिए कोर्ट जो है उसको एडजर्न कर देता है या डेफर कर देता है फॉर एनी रीजन, जैसे उसने आर्गूमेंट्स में लगा दिया कि 3 तारीख को, आज पहली है तो 2 दिन के बाद सुनेंगे आर्गूमेंट्स, और उसी के बीच में चलान आ जाता है। जैसे फर्स्ट को एप्लीकेशन लगाई, सेकंड को चलान आ गया, थर्ड को उसने डेट लगा रखी थी कोर्ट ने, तो क्या ये उससे राइट डिफीट हो जाता है उसका? दैट इज नंबर 1। वो क्वेश्चन पहला है कि अभी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई, अभी एप्लीकेशन लगाई है उसने और एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई और उससे पहले चलान आ जाता है, तो आंसर इज नो, राइट डिफीट नहीं होता। वंस ही हैज मूव्ड एन एप्लीकेशन, देन उसको सब्सिक्वेंटली चलान फाइल करने से राइट डिफीट नहीं होता। तो इसलिए अगर वो सेकंड को उसने चलान दे दिया और थर्ड में लगी हुई थी तो वो राइट रहेगा उसका, थर्ड को कोर्ट डिसमिस नहीं कर पाएगा, उसको एप्लीकेशन को कोर्ट को अलाउ करनी पड़ेगी, एंड ही हैज सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स फर्निशिंग ऑफ बॉन्ड्स। दूसरी सिचुएशन हमने डिस्कस जो की थी वो ये थी कि अगर वो पहली तारीख को लगाता है एप्लीकेशन और पहली को ही वो डिसाइड कर देता कोर्ट, पर वो बॉन्ड्स नहीं देता, the accused fails to furnish the bonds, और 2 तारीख को चलान आ जाता है, और 3 तारीख को फिर वो एप्लीकेशन लगाता है कि मैं बॉन्ड देने के लिए तैयार हूं, तो उसमें उस कंडीशन में क्या सिचुएशन रहेगी? तो एज वी हैव डिस्कस्ड उस डेट पे कि उस सिचुएशन में उसका राइट डिफीट हो जाता है। अगर उसको बॉन्ड्स देने थे तो उसी दिन देने चाहिए था, पहली तारीख को। अगर उसने नहीं दिया और उससे पहले चलान आ गया, then his right is lost, it gets extinguished। तो ऐसी सिचुएशन थी। अब इसमें जो इन्होंने कई क्वेश्चन आए हैं उसमें ये कहते हैं, मान लीजिए कि एप्लीकेशन आप एक्यूज ने 10 बजे लगा दी और 10:05 पे चलान आ गया। एक तो ऐसी सिचुएशन किसी ने पोज की है, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस, सिचुएशन वही रहेगी क्योंकि एप्लीकेशन पहले आई है, तो इसलिए उसका राइट जो है वो रहेगा बेल का। इट कैन नॉट बी डिफीटेड भी 5 मिनट बाद, अगर खाली 5 मिनट बाद ही आया है, अभी तो डिसाइड भी नहीं हुई, ये नहीं है। ऐसे किसी ने पूछा भी अगर वो आर्गुमेंट हो रही है और आर्गुमेंट अभी चल रही है, उसके भी दरमियान आ गई तो क्या हुआ? वो भी वही सिचुएशन है क्योंकि एप्लीकेशन पहले आ गई है, चलान बाद में आया है, ठीक है। और भी था एक सिचुएशन ये है कि मान लीजिए ऑर्डर उसने ठीक है आर्गुमेंट सुन ली और ऑर्डर 11 बजे सुना दिया, यानी कि 10 बजे एप्लीकेशन लगी, 10:05 पे चलान आ गया और 11 बजे ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने भी, हाँ ठीक है बेल ग्रांटेड, बट द एक्यूज्ड डज नॉट फर्निश द बॉन्ड्स, उस दिन बॉन्ड नहीं देता और अगले दिन देना चाहता, देन ही कैन नॉट, क्योंकि ही हैज टू बी रेडी। उसमें वर्ड 167 में यही लिखा है ना कि दैट ही इज रेडी टू फर्निश he is ready to furnish the bonds, so he should be ready to furnish bonds। अब ये इसी की एक्सटेंशन में किसी ने ये पूछ लिया आगे कि मान लीजिए 4:30 बजे अगर ऑर्डर सुनाया जाए, तो 4:30 बजे अगर सुनाएंगे तो कोर्ट आवर्स जो खत्म हो गए, कोर्ट उठ के चली गई, तो अब एक्यूज क्या करेगा? तो ऐसे कोई डायरेक्ट अथॉरिटी तो मिलेगी नहीं आपको इन चीज़ों के ऊपर, अभी तक तो फिलहाल मेरी नज़र में तो कोई नहीं आई। बट एनीवे जो मेरी समझ में आती है बात वो यही है कि अगर वो 4:30 बजे वो ऑर्डर सुना रहा है कोर्ट, तो अगले दिन 10 बजे 10:30 बजे वो अगर वो बॉन्ड्स फर्निश करता है तो दे हैव टू बी एक्सेप्टेड। सो आई वुड गो विद द एक्सप्लेनेशन के रीजनेबल टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। ये तो नहीं है कि आपने ऑर्डर सुनाया तो वो वहीं खड़ा हो भी, हाँ लीजिए अभी लो। वी कांट बी सो मैकेनिकल, तो इट हैज टू बी ए रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम कितना होगा ये तो कोई जजमेंट आएगी क्लियरली इस पॉइंट पे तभी पता चलेगा, अभी तक तो फिलहाल है नहीं।
पर मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि उस दिन को, जिस दिन को वो ऑर्डर सुना रहा है, उस दिन एक दिन तो जो वो टाइम है उतना वेट करना बनता है, क्योंकि जो भी इंटरप्रिटेशन हम दे रहे हैं इसको कि ये प्रोविजन बना क्यों है, ये डिफॉल्ट बेल वाला प्रोविजन इसलिए बना हुआ है कि लिबर्टी को हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो लिबर्टी को अगर कर्टेल करने वाले जो जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं या इंटरप्रिटेशन हैं, उनको फेवर नहीं करते। वी फेवर दी इंटरप्रिटेशंस विच गो विद लिबर्टी, ठीक है, जो जिससे लिबर्टी मिलती है। तो ये इसलिए रीजनेबल पीरियड जो है वो देना पड़ेगा, and which in my opinion can extend to that particular day on which the order has been pronounced. यहाँ 4:30 बजे अगर सुना रहे हैं तो नेक्स्ट डे। तो आई होप कि हमने, लेट्स गो वन बाय वन, शायद कोई मिस भी कर गए हम। पहले वाला क्या था, चौथा? Sir, I think we have covered all the proposition. ये है कुछ देखना, 4 वाला पढ़ना क्या है? A scenario is where application for furnishing bail bonds is contemporaneous to the filing of challan on the second received by judge at the same time. अच्छा, ये तो वही है। ओके, अच्छा, ये इसमें एक चीज और है कि हमारे एक हाई कोर्ट की जजमेंट है, निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2018 की है। निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें उन्होंने डायरेक्शंस इशू की थी और वो जजमेंट सर्कुलेट भी की गई है, जो सारी कोर्ट्स में गई होगी जरूर। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इन सिचुएशंस को देखते हुए भी ये झगड़े पड़ते हैं बाद में, तो ये डिजायरेबल है कि जो कंसर्न्ड कोर्ट है उसके पास जब भी चालान आता है तो उसके ऊपर टाइम लिखे कि मेरे पास इतने बजे है। और उन्होंने ये भी सिचुएशन थी एक केस में कि वो जैसे चालान अहलमत को दे जाते हैं, तो ये कोर्ट ने होल्ड किया कि चालान अहलमत को देने से बात नहीं बनती, क्योंकि इट शुड बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। प्रेजेंट कितने बजे किया गया कोर्ट में, वो टाइम रेलिवेंट है। अहलमत को कब दिया गया, दैट इज नॉट रेलिवेंट। सो इतने बजे कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, तो वो टाइम उन्होंने डायरेक्शन दिया भी, आप इसको वो लिखा करिए। तो ये 4th क्वेश्चन था। और भी देख लो, कोई सारे हो रहे हैं, कोई बीच में रहना देखें। So another question was what should be done when you are hearing default bail application? So you have already addressed this. ये तो हो गया अपना। The arguments were already done or तो वही है, वो तो एप्लीकेशन पहले आई हुई है तो आर्गुमेंट सुन रहे हैं, एप्लीकेशन तो आ गई पहले, वो तो वही सिचुएशन है। 7th क्या है? 7th is whether the accused still has indefeasible right if he could arrange surety on the same day after the filing of the challan. What if before decision of the court, charge sheet is filed on the same day? यही है ना? Right. But after the application under 167, then whether accused still has indefeasible right if he could, वही है, ये तो सेम, इसमें कोई फर्क नहीं। So can I move to the question 9th पे देखिए, 9th पे। Right. So in this case, an FIR against 4 accused persons was lodged. On the 60th day, challan filed against 3 of them. It was stated in last para of challan that challan against accused number 4 would be filed after completion of investigation against him. So whether the 4th accused is now entitled to default bail. Okay. अच्छा, ये वैसे मेरे ख्याल क्वेश्चन जो है ना, ये दिखाने पड़ेंगे स्क्रीन पे आपको। ये अगर नहीं दिखा रहे हैं तो ये दे माइट मिस, जो देख रहे हैं उनको दे माइट नॉट बी एबल टू प्रॉपरली अप्रिशिएट दिस कि क्वेश्चन क्या था, कई बार मिस हो जाता है आपसे, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा थोड़ा। इसको जूम कर दो। 9th क्वेश्चन, 9th पे ले आओ, 9th पे। अभी अच्छा, एनीवे इसमें क्वेश्चन ये है कि 4 अक्यूज हैं
चालान जो है वो 3 के खिलाफ फाइल करते हैं उन्होंने, और चौथे के खिलाफ उन्होंने कहा कि बाद में ही करेंगे। यही है ना क्वेश्चन, करो ना, आई यही क्वेश्चन था। Now it is on the screen also. ओके, तो ये इसमें ये तो क्लियर नहीं किया उन्होंने कि भाई चौथा भी एक्यूज कस्टडी में है या नहीं है। तो एनीवे लेट्स अज्यूम कि चारों कस्टडी में थे। तो अगर चारों कस्टडी में हैं और वो 3 के खिलाफ चालान दे रहे हैं, चौथे के खिलाफ कह रहे हैं कि अभी ये जो अभी बाद में देंगे, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रही है। तो फिर तो वो 167 वाला आ गया, उसमें प्रोविजन बाहर है ना उसमें, कि आपको इन्वेस्टिगेशन जो है वो 60 दिन में या 90 दिन में कंप्लीट करनी है। अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो उसका देन यू हैव टू लेट हिम ऑन। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि चौथे के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन की नहीं कंप्लीट हुई है, तो ही वुड बी इंटाइटल्ड टू डिफॉल्ट। अगर वो अरेस्ट ही नहीं हुआ तो फिर तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं अराइज होता। अगर अभी तक अरेस्ट ही नहीं हुआ, जब अरेस्ट होगा, जब उसका रिमांड दिया जाएगा, तो वो तब से दिन गिनने शुरू होंगे। सो आई होप कि ये इसमें इट इज क्लियर कि जो फोर्थ एक्यूज्ड है उसके खिलाफ उसका राइट बन जाता है डिफॉल्ट इन दिस सिचुएशन। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? So then there are few questions on the computation of days, because this is also generally the confusion before the magistrate. So the first question is, which days are to be excluded? इसमें मैं थोड़ा पिछला रेफर कर देता हूँ, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी ये जिक्र किया था। He had referred to the judgment of Ravi Prakash versus State of Bihar. कौन सी थी वो? नहीं, रविंद्रन वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर, रविंद्रन वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर, 26 अक्टूबर 2020 की जजमेंट है। ये भी 3 जजेस बेंच है। उन्होंने दे हैव रेफर्ड टू वेरियस जजमेंट्स, प्रीवियस जजमेंट्स, और उन्होंने यही कहा है कि जब हम गिनते हैं दिन, तो फर्स्ट डे ऑफ रिमांड जो है, जिस दिन ऑर्डर करता है मैजिस्ट्रेट रिमांड का, वो दिन एक्सक्लूड करना है और लास्ट डे को इंक्लूड करना है। तो ये प्रिवेल कर रही है अब अथॉरिटी जो है, ये फुल बेंच नाउ दिस इज प्रिवेलिंग, पर डिस्प्यूटेड है। देयर इज अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दिस जजमेंट, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ना कि ये प्रोविजंस को इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स ये कहती हैं भी इसको इंटरप्रेट ऐसे करो जो एक्यूज्ड के हक में हो, जो कस्टडी जिसकी लिबर्टी आपने ले रखी है, डिप्राइव कर रखा है जिसको लिबर्टी से, उसके हक में इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। अगर हम पहले वाला दिन छोड़ देते हैं और लास्ट वाला दिन इंक्लूड करते हैं, उससे एक दिन का फर्क पड़ जाता है। अगर हम पहले वाला दिन भी इंक्लूड करें तो एक दिन पहले खत्म हो जाती है जो 60 डेज और 90 डेज की है। तो इसलिए वो फेवर कुछ काफी लोग करते हैं। और अब ये एक 2 जजेस बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने मैटर रेफर किया चीफ जस्टिस को कि लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए इस कंट्रोवर्सी को डिसाइड करने के लिए कि ये दिन कैसे गिनने चाहिए, कैसे गिने जाने चाहिए, क्या पहला दिन छोड़ना ठीक है या नहीं ठीक है। तो एनीवे अभी तक तो यही है, अभी तो लॉ यही है कि पहला दिन छोड़ना है और लास्ट डे को इंक्लूड करना है। तो एक तो ये था इसमें कंप्यूटेशन ऑफ डेज में। अच्छा, दूसरा जो है दिन हमने वही गिनने हैं जो मैजिस्ट्रेट ने रिमांड के दिन है। जैसे जब पुलिस वालों ने अरेस्ट किया है, पहले दिन 24 घंटे रख सकते हैं सेक्शन 57 में, वो दिन दैट डे इज नॉट इंक्लूडेड, वो दिन इसमें नहीं गिना जाता। रिमांड गिना जाता है जब जिस दिन को रिमांड दिया। तो यही 2 सिचुएशन थी कि कुछ और भी था इसमें। So the second question is in the nature of a proposition. In this case, the accused surrendered before the court, but the IU did not turn up and does not make the arrest, and the court sends him to the judicial remand. Afterwards, IU comes up with the application to seek the arrest of the accused. The court issues production warrant, and on appearance of the accused in the court, allows the IU to make his arrest. Then IU was granted police remand for 1 day. Thereafter, the accused was sent to judicial remand. Now the question is, from which
date order of remand, the period of 60 or 90 days has to be computed. ये तो वही है, nothing complicated about it. सिंपल है, उसमें 167 में यही लिखा हुआ है कि फ्रॉम द डेट ऑफ रिमांड बाय द मैजिस्ट्रेट। तो अगर एक्यूज सरेंडर कर रहा है कोर्ट में, तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे द मैजिस्ट्रेट इज पासिंग एन ऑर्डर ऑफ रिमांड, ही इज सेंडिंग हिम टू जुडिशियल कस्टडी। इसलिए उसी वो ही पहले दिन से ही रेलिवेंट हो गया। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को उसने एक तारीख को वो सरेंडर किया उसने एक्यूज ने, और 1 तारीख को उसने जुडिशियल में भेज दिया उसको, तो एक तारीख से शुरू हो जाएगा। जैसे पर कंप्यूट तो हम वैसे ही करेंगे, पहला दिन छोड़ते हैं, वो बाकी दिन गिनते हैं, बट वो आ जाएगा। इसके बीच में अगर उसने आकर रिमांड, पुलिस रिमांड मांगा और पुलिस रिमांड ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी रिमांड है। पुलिस रिमांड भी तो बीच में ही गिना जाता है। एनी ऑर्डर ऑफ रिमांड, इट मे बी जुडिशियल और मे बी पुलिस रिमांड, दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं। सिर्फ सेक्शन 57 वाला नहीं इंक्लूड होता, रिमांड सारे इंक्लूड होते हैं, जुडिशियल हो या पुलिस हो। तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका बीच में अगर आके वो इसका पुलिस रिमांड ले लेता है तो इट विल मेक नो डिफरेंस। ओके। So the next 3 questions are on the topic NDPS regarding the incomplete challan. So the question number 12 is, can the principles of the case of Ajit Singh be applied in Excise Act cases? If not, then what is the reason of calling FSL report? If without FSL report, we can ascertain that recovered property is liquor itself. The same thing will apply to excise cases also if report is not there. ये बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर बन गया ये। अब इसको अप्रिशिएट करने के लिए शायद हमने कुछ डिस्कशन पिछली बार भी की होगी। अजीत सिंह वाले केस की डिस्कशन हमने शायद की थी। अजीत सिंह केस कहता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, व्हाट डज दैट डीवी से। उन्होंने 2-3 चीजें मेन डिस्कस की हैं उस जजमेंट के अंदर। वो ये है कि एनडीपीएस एक्ट जो है वो एक बहुत ड्रैकोनियन लॉ है और बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, जिसमें कंडीशंस बेल की, उसमें पनिशमेंट जो है इट कैन गो अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और बेल आप कर नहीं सकते। जेल इज द रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन। वहाँ ट्विन कंडीशंस हैं जहाँ पर मैजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती है अपनी, आई एम सेटिस्फाइड that there are reasons to believe that this person has not committed this offense, and he has also to give a satisfaction कि ये अगर इसको बेल मिल जाएगी तो ये नहीं करेगा, he will not commit offense। तो इतना स्ट्रिंजेंट है। अगर ऐसी कंडीशन है, इसका मतलब है कि आप बेल किसी केस में भी कर नहीं सकते। बहुत ही रेयर जहाँ पर कोर्ट ये कह सके भी हाँ ये तो बनता ही नहीं है भाई, उस केस में बेल हो पाएगी। फिर उसमें सिर्फ यही नहीं है, उसमें जो रिमांड का प्रोविजन है 180 डेज का है, तो 180 दिन तो आप उसको वैसे ही रिमांड जुडिशियल में रख सकते हो। उसके बाद आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ दैट पीरियड, और वो पीरियड जो है 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब इस सिचुएशन में अगर जो इतना स्ट्रिंजेंट लॉज है, इतने सख्ती है, इतनी ज्यादा पनिशमेंट है, उसमें अगर कोई पुलिस ऑफिसर बदमाशी भी कर सकता है, और वैसे भी अगर मान लीजिए उसको कोई किसी बेसिस पे कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे कहीं से रिकवरी करता है। बहुत सारे कॉन्ट्राबैंड ऐसे हैं जिनको आप देख के नहीं आप आइडेंटिफाई कर पाते। बहुत सारी चीजें एनडीपीएस एक्ट में तो बहुत सारी, कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, जिनको इट इज अनलाइक, जैसे इन्होंने क्वेश्चन उस पर कहा है ना कि एक्साइज एक्ट में क्यों नहीं हो सकता सर, तो एक्साइज एक्ट की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक्साइज एक्ट तो पहले तो उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, पनिशमेंट बहुत कम है, कोई बेल का झगड़ा नहीं है, कोई रिमांड का झगड़ा नहीं है इसमें,
यू कैन गिव बेल टू एनीवन। तो वो तो बहुत 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 लाइट है इसके कंपैरिजन में। एक चीज तो वो है। दूसरी, उसमें अगर वो लाहन पकड़ता है या लिकर पकड़ता है तो उसमें वो कहता है मैं डिस्टिलरी ट्रेंड हूँ जी, और मैंने स्मेल और टेस्ट करके देखा तो ये वो है, तो उसको भी वो प्राइमा फेसी मान लेते हैं अभी, हाँ इसको इसका कुछ बेसिस था। अब ये जो एनडीपीएस में कोई ऐसा कॉन्ट्राबैंड जो वो पोजीशन में ले रहा है आईओ, जिसको नेकेड आई से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, और ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती उसको कि हाँ भी आप आइडेंटिफाई कर लो ये नारकोटिक है या नहीं है, ये इसमें फॉल करेगा कॉन्ट्राबैंड या नहीं। तो उस सिचुएशन में उसने उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, 180 दिन के लिए आपने उसको अंदर डाल दिया जुडिशियल में। उसके बाद पीपी साहब ने एप्लीकेशन दी, उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी। अब साल तक आपने रख लिया, उसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट आ रही है और उसमें वो आ गया नेगेटिव, तो मान लीजिए तो कितना ड्रैकोनियन प्रोविजन है और कितनी कितनी नाइंसाफी हो सकती है किसी व्यक्ति के साथ। ये चीजें उन्होंने डिस्कस की डिवीजन बेंच ने कि ये ऐसे प्रोविजन है, ये एनडीपीएस एक्ट उन्होंने पिछली जजमेंट डिस्कस की है, जैसे तारा सिंह स्टेट वर्सेस महल सिंह, उन्होंने ये डिस्कस की और ये कहा भी एनडीपीएस एक्ट को था ही नहीं उस वक्त जब वो जजमेंट थी, और ना ही उसको डिस्कस किया गया। तो इसलिए ये सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी उस वक्त, और ना ही फुल बेंच के सामने थी। भाई ऐसे ऐसे लॉ हैं जिनमें ये सिचुएशन हो सकती है। फिर उन्होंने एक चीज और, एक एंगल और से डिस्कस किया उन्होंने कहा भी अगर मान लीजिए वो कॉन्ट्राबैंड पकड़ लिया उसने, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि ये इसके पास जी वो फला केमिकल जो है ना वो जो इसमें फॉल करता है वो इसकी पोजीशन में है, तो उन्होंने गया, उन्होंने कुछ मटेरियल मिल गया उससे, उसको पकड़ लिया उन्होंने और उसको पकड़ के अंदर डाल दिया। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम करुण? So we were discussing Ajit Singh. You were telling about the possibility and that there can be misuse of the provision, that the person can be behind the bar for a long time and then. Okay, right. अच्छा हाँ, ये कमिंग टू दैट पॉइंट कि ऐसी सिचुएशन में जब उसने ऐसा कुछ कॉन्ट्राबैंड उससे ले लिया उसमें कुछ, और उसमें चालान पेश कर रहा हो कि एफएसएल की रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है, पर हमें ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये इसके पास कॉन्ट्राबैंड है, हमने ये जाकर पकड़ा, रिकवर किया और भेज दिया सैंपल बना के। अब कोर्ट के पास आ गया। जब कोर्ट में चालान फाइल होता है तो कोर्ट को सेक्शन 190 के तहत उसको डिसाइड करना है कि वो कॉग्निजेंस लेगा या नहीं लेगा। कोर्ट के पास 3 ऑप्शंस हैं उस चालान जब फाइल होता है। नंबर 1, ही मे एक्सेप्ट दी चार्जशीट, अगर उन्होंने पेश की है, जो उन्होंने कहा है भी हाँ इसके खिलाफ एविडेंस है हमारे पास, तो ही मे एग्री विद देम और ही मे डिसएग्री विद देम। वो कहे भी आपके पास एविडेंस है ही नहीं है, आई विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस केस। और थर्ड है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकता है। तो तीनों ऑप्शन उसके पास ओपन है। अगर इस सिचुएशन में जब एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है उसके पास, तो कैन ही टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट एविडेंस? दैट वाज आल्सो द क्वेश्चन व्हिच वाज पोज्ड बाय डिवीजन बेंच कि उसमें कॉग्निजेंस कैसे लेगा? क्या वो इस चीज को मान लेगा भी हाँ तेरे को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली आईओ को और तूने कहा भी हाँ मैंने वो रिकवर कर लिया, मैंने एफएसएल को भेज दी है, तो कोर्ट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट एविडेंस? That so in the views of division bench that would not be possible in that situation. तो ये सारी चीजों को डिस्कस करते हुए, स्ट्रिंजेंट प्रोविजन को डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा भी इस केस में एज फार एज एनडीपीएस केसेस आर कंसर्न्ड, इसमें विदाउट एफएसएल रिपोर्ट चालान जो है ना, इट डजंट मेक एनी सेंस। और इसमें एफएसएल रिपोर्ट आनी जरूरी है, अदरवाइज इट शुड बी कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट चालान। अब इसमें हमारी हाई कोर्ट में जो है we have different views. मेरे ख्याल we have 4 single bench judgments जो इसको फॉलो कर रही है, डिवीजन बेंच को भी सेट के ठीक है, और 2 जजमेंट्स ऐसी हैं जो डिफर कर रही है, जो कह रही है कि नहीं ठीक। So they have referred to Supreme Court judgments also, जो 2015 की या 2008 की है, कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं। पर वो none of those judgments is directly on these points जो इस डिवीजन बेंच में रेज किए गए हैं पॉइंट्स,
उन किसी पॉइंट पे नहीं है वो। बाकी ट्रायल कोर्ट्स के लिए ठीक है, कंफ्यूजन है कि जी अब क्या करें इस केस में, व्हाट शुड बी डन। तो एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न्ड, वी हैव टू गो बाय द डिवीजन बेंच। हमारे पे डिवीजन बेंच, ये मेरी ओपिनियन है कि डिवीजन बेंच हमारे पे बाइंडिंग है। सिंगल बेंचेस डिफर कर रहे हैं टिल that division bench judgment is set aside by a larger bench or by the Supreme Court. We have to follow that. So that is my interpretation इसके बारे में। All right, और क्या है इसमें? Next question is the court at liberty to return the challan as incomplete if only interim bail has been granted? कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो? So question number 13. Is the court at liberty to 11 में क्या था? 11 में क्या था? Question 11 क्या था? So 11 has already been done. That was the proposition which was there. In case it So that was on default bail. We've already covered that. So. Okay, अच्छा ठीक है। अब तो 13 पे हुआ। Yes, sir. Right. Okay, हाँ जी पढ़िए। Is the court at liberty to return the challan as incomplete if only interim bail has been granted and orders has been attached and the bail matter is still pending before the Honorable High Court? पता नहीं इनके दिमाग में क्या था जब इन्होंने क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा। अगर सुपीरियर कोर्ट के पास एप्लीकेशन पेंडिंग है बेल की, एंटीसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल हो, कोई भी हो, और आपके पास ट्रायल कोर्ट के पास चालान आ जाता है उसमें, तो हम जो वी कैन नॉट गिव अ डिसीजन ऑन एनी पॉइंट ऑफ विच द सुपीरियर कोर्ट इज सीज्ड। अगर सुपीरियर कोर्ट के पास वही मैटर पेंडिंग है, वही पॉइंट पेंडिंग है, फिर हम अपनी ओपिनियन दे सकते। अगर उनके पास वो पॉइंट पेंडिंग नहीं है, वो इशू पेंडिंग नहीं है, तो फिर उसमें कोई बार नहीं है। अदरवाइज अगर इस सिचुएशन में सुपीरियर कोर्ट के पास ये मुद्दा था कि ये चालान कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इसको इसलिए बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, फिर तो आप नहीं कर पाओगे। अगर दूसरे ग्राउंड्स पे उन्होंने बेल डाल रखी है और आपके पास चालान आ गया, फिर कोई बार नहीं है आपके पास, फिर तो आप कर ही सकते हो इनकम्प्लीट चालान। उस पॉइंट पे नहीं कर सकते जो पॉइंट उनके पास सुपीरियर कोर्ट के पास पेंडिंग है, जो इश्यूज उनके पास पेंडिंग है, उस पे आप अपनी फाइंडिंग नहीं कर सकते। Right, sir. The next question. Can I take the next question? Yes, question please. 14. In NDPS case, if contraband is recovered from 3 accused separately at the same spot, whether the same is to be considered as the joint recovery for the purpose of consideration of bail? हाँ, मान लीजिए एक जगह पर 3 आदमी खड़े हैं और तीनों के पास अलग अलग पॉपी हस्क है या कुछ भी, कोई एनी कॉन्ट्राबैंड लेयर के 20 किलो एक के पास है, 20 एक के पास है, 20 एक के पास है, तीनों इकट्ठे खड़े हों, यहाँ एक ही स्कूटर पे हैं या एक ही व्हीकल पे हैं, तो प्रोसिक्यूशन नेचुरली एलेज करेगी कि भाई इट इज अ केस ऑफ जॉइंट पोजीशन। ये इकट्ठे थे, चाहे इन्होंने 3 हिस्सों में बांट रखा हो, यहाँ एक ही बोरी उठा रखी है, कार के अंदर रखी हुई है, व्हीकल के अंदर रखी है और 3 आदमी ट्रेवल कर रहे हैं, तो देयर कैन बी एलिगेशन ऑफ जॉइंट पोजीशन। इसके ऊपर हमारे हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, वो भूपेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, भूपेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005, वॉल्यूम 1 RCR क्रिमिनल, पेज 168। ये फुल बेंच है आपके रिपोर्ट। उसमें यही पॉइंट था कि सेक्शन 15 में लिखा हुआ है whoever is found in possession, whoever वर्ड से शुरू होता है, तो उन्होंने whoever की इंटरप्रिटेशन उन्होंने कहा कि whoever would include joint possession, cases of joint possession, it can include plurals also, एक आदमी है, 2 है, 3 है, that doesn't make any difference।
whoever would include that. इसके अलावा जो एक जजमेंट डायरेक्टली इस पॉइंट पे अच्छी जजमेंट है कलकत्ता हाई कोर्ट की, वो है 2016 सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन कलकत्ता 3465। उस केस में भी यही एलिगेशन थी उनकी, दो एक्यूज थे, तो 21 किलो गांजा था, तो उन्होंने यही प्ली ली थी भाई ये इसको डिवाइड किया जाना चाहिए कि आधा मेरे पास आधा उसके पास, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करिए कि कोई कमर्शियल क्वांटिटी बनती है या नहीं बनती। दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। उन्होंने कहा ये एलिगेशन आपके खिलाफ जॉइंट पोजीशन की है तो वो प्रिवेल करेगी अनलेस यू कैन ब्रिंग ऑन द फाइल सम मटेरियल जिससे आप दिखा पाओ कि ये हमारा आपस में कोई लेन देन, आपस में कुछ ताल्लुकात नहीं था, सेपरेट है हमारा, बिल्कुल अलग अलग, हमारी इसकी पोजीशन अलग थी, मेरी अलग थी, ये अपना, we have nothing to do with each other. It was not a case of joint possession. So otherwise joint possession ही मानी जाएगी, it will be taken as joint possession. ये citation लिखवाई है मैंने आपको इसकी 2016 सुप्रीम कोर्ट केसेस लिखवाई है ना? नहीं सर, लिखवाई थी आपने 2006। हाँ, ये कलकत्ता हाई कोर्ट की है, सुदीप कारमाकर 2016 सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन कलकत्ता 3465। ये ओके, चलिए आगे। So the next questions are on the anticipatory bail. इसमें एक ही था क्वेश्चन, यहाँ तो एक ही था नहीं? So ये 3 क्वेश्चन थे एनडीपीएस पर, 2 were regarding the incomplete challan and the third was regarding the joint possession. Okay. Right. So question number 15. While adjudicating upon an application under section 438 CRPC, in what context the term exceptional be taken into consideration? ये तो गुरबख्श सिंह सीबीआई वाला केस अगर पढ़ लीजिए आप, उसमें ही लिखा हुआ सब कुछ एक्सप्लेन्ड है ये वाला, गुरबख्श सिंह उसी से लिया हुआ एक्सेप्शनल। उसमें कहा है भाई ये रेमेडी जो है ना एंटीसिपेटरी बेल की, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी तो है, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी, बट देयर इज नथिंग एक्सेप्शनल। आपको कोई एक्सेप्शनल मटेरियल नहीं लेके आना, इसमें वही कंसिडरेशंस हैं जैसे दूसरी बेल में होती हैं, वही कंसिडरेशंस में, नथिंग एक्सेप्शनल अबाउट इट, एब्सोल्युटली। गुरबख्श सिंह सीबीआई में ये चीज क्लियर है, यू कैन गो थ्रू दैट जजमेंट। Next, yeah. Next question is question number 16. Whether we should take a fresh bail bonds after filing of challan in case of anticipatory bail? नहीं, ऐसा तो कभी, अच्छा ये कंफ्यूजन उसकी वजह से है, पहले एक जजमेंट आई थी 3 जजेस बेंच की सलाउद्दीन वाले केस में, सलाउद्दीन केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उस जजमेंट में उन्होंने ये कहा था भी एंटीसिपेटरी बेल जो है ना, वो तो सिर्फ टिल फाइलिंग ऑफ चालान ही हो सकती है। जब चालान फाइल हो जाता है उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल खत्म हो जाती है, देन यू हैव टू मूव एन एप्लीकेशन फॉर रेगुलर बेल, और वो कोर्ट कंसिडर करेगा उस मटेरियल के बेसिस पे जो चालान में आया है। तो इसलिए ये शायद उसी की वजह से कंफ्यूजन है, अदरवाइज जो गुरबख्श सिंह सीबीआई है वो भी क्लियर है, और ये अब जो रिसेंट आई है सुशीला अग्रवाल वाली केस जजमेंट थी, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैं, तो दोनों में ये क्लियर है कि जो एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर होता है नॉर्मली इट गोज टिल द एंड ऑफ द ट्रायल। उसमें अगर कोर्ट करना चाहे तो उसको शॉर्टर टर्म के लिए कर सकती है, बट नॉर्मल सिचुएशन में अगर ऑर्डर कर दिया तो वो एंड ऑफ ट्रायल तक चलेगा। तो इसलिए कोई ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं होती कि अब चालान आ गया है तो अब इसको आपको दोबारा से बेल बॉन्ड देने पड़ेंगे, नो, यू डोंट हैव टू। अगर आपने फाइल कर दिया और पहले तो वो चलेंगे, दे विल गो, वही चलेंगे। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्या? So the next question is question number 17. If during trial accused absents himself and his arrest warrants are issued,
then can accused still claim the benefit of Sushila Agarwal case by taking the plea that he has been granted bail, anticipatory bail before filing of challan, and now it remains operative till the conclusion of the trial? Means once he has been granted anticipatory bail, can't he be arrested even due to his absenting himself from the trial? इसमें ये देखो, जब सुपीरियर कोर्ट कोई बेल करता है, चाहे वो एंटीसिपेटरी हो चाहे रेगुलर बेल हो, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते. They can't cancel that order. But once the accused has appeared in your court and has filed bonds, तो उसके बाद एक प्रोविजन है 446A 446A CRPC. ये बाद में आया, अमेंड की गई थी CRPC, अमेंडेड प्रोविजन. और वो ऐसी ही सिचुएशंस को मीट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो एडवोकेट्स जो ये प्ली लिया करते थे कि जी आप जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो सुपीरियर कोर्ट का बेल ऑर्डर, चाहे वो एक्यूज चाहे 1 साल लापता रहे, वो एब्सेंट रहे, 1 साल के बाद आ जाएगा वो, और वो एप्लीकेशन आके लगाएगा वो लॉयर जो है कि जी हम दोबारा बॉन्ड देने के लिए तैयार है. तो वो बेल तो कैंसिल हुई नहीं, ना आप कर सकते हो. कोर्ट तो जिस सुपीरियर कोर्ट ने कर रखी है, तो आपके पास पावर नहीं है कैंसिल करने की, तो इसलिए कैंसिल बेल तो स्टिल स्टैंड्स. बॉन्ड लेने हैं आपने, बॉन्ड हम दोबारा दे देते हैं. तो ऐसी आर्गुमेंट आया करती थी. उसको बीट करने के लिए 446A CRPC बनाया गया, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब भी बॉन्ड किसी ने दे रखा है एक्यूज ने और उसकी कंडीशन वायलेट करता है, इट डजंट टर्न अप, तो और बॉन्ड फॉरफीट हो जाता है, देन इट इज ऑटोमेटिकली कैंसल्ड. एक तो ये लिखा उन्होंने, ऑटोमेटिकली कैंसल. और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि उसके बाद द मैजिस्ट्रेट, द कंसर्न कोर्ट जो भी है मैजिस्ट्रेट, इट मे और इट मे नॉट एडमिट दैट पर्सन टू फ्रेश बेल. इस 446A में ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये प्रोविजन सिर्फ मैजिस्ट्रेट्स के लिए है, ये जो मैजिस्ट्रेट्स ने ऑर्डर दिए हैं उनके लिए है. सो इट अप्लाइज टू ऑल केसेस, इट अप्लाइज टू ऑल केसेस. इसका मतलब उसकी बेल कहीं से भी हुई हो, इट विल अप्लाई. उसमें स्पेसिफिकली ये लिख दिया कि एक बार अगर बेल जंप कर गया तो उसका बॉन्ड फॉरफीट हो गया, द बॉन्ड्स विल स्टैंड कैंसल्ड, एंड देन द मैजिस्ट्रेट मे, वर्ड मे यूज किया उन्होंने, मे एडमिट हिम टू बेल. तो इसकी इंटरप्रिटेशन जो है, अभी 2 जजमेंट्स आ चुकी हैं, एक तो राजस्थान हाई कोर्ट की आई है, एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की आई है. दोनों ने यही कहा कि उसकी इंटरप्रिटेशन यही की है कि वो बेल जो है चाहे किसी कोर्ट ने रखी हो, देन इट इज नो लॉन्गर, बेल खत्म हो जाती है उसके साथ ही, और उसके बाद मैजिस्ट्रेट की मर्जी है कि वो उसको बेल दे या ना दे. तो ये इंटरप्रिटेशन है दोनों 446A में वो कॉल करेगा. सुशीला अग्रवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ अभी. हाँ जी, ये हमने अगर एक बार बेल कर दिया तो इसके बाद वो आए ना आए तब भी बेल चलती रहेगी, ये तो कहीं नहीं कहा उन्होंने, ना किसी कोर्ट ने भी नहीं कहा. वो बेल वुड कम टू एन एंड. ओके, नेक्स्ट क्या है? So moving on to next question, question number 18. जी. It is also a proposition. A renowned celebrity was shown on social media to be snubbing and hurting a public servant of market committee. The accused is on anticipatory bail from Honorable Supreme Court. Now challan presented in the court. However, he was not produced before the court with the challan. Court notices are being sent to accused to appear, but he is avoiding service. What should be done in such circumstances? Can the court issue non-bailable warrant? हाँ, ये जिसको एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर मिला हो, वो अगर पेश नहीं होता कोर्ट में तो क्या करना चाहिए, ये है इनकी
जो इस प्रोपोजिशन वगैरह के लिए जानना चाहते हैं। उसमें ये 438 का सबसेक्शन 3 है, 438 का सबसेक्शन 3 जो आपको परमिट करता है कि आप बेलेबल वारंट निकाल सकते हो उसका। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके सम्मान ही निकाल करने हैं भी, हाँ जी उसको तो बेल मिली हुई, अब मैं क्या करूँ, एंटिसिपेटरी बेल है। तो बेलेबल वारंट्स का प्रोविजन 438(3) में है। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति नहीं पेश हो रहा, उसके लिए दो चीज़ें हैं आपके पास। एक तो स्टेट जा सकता है उसकी बेल का एंटिसिपेटरी बेल ही कैंसिल कराने के लिए, जिस कोर्ट ने दिया उसको वहाँ एप्लीकेशन लगा सकता है। दूसरा जो कंसर्न कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट है, वो ही कैन इशू ए बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट पे अगर वो मान लीजिए उस पर रिपोर्ट आ जाती है कि वो मिला ही नहीं जी हमें, या वो एब्सकॉन्ड कर गया है, या ही इज कंसीलिंग हिज प्रेजेंस, then that would be sufficient for proceeding against that person under section 82. 82 की कार्रवाई आप कर पाएंगे उसके खिलाफ अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आ जाती है। अगर बेलेबल वारंट की सर्विस हो जाती है तो फिर वो आ ही जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। नहीं आएगा तो बॉन्ड्स 446 की कार्रवाई शुरू करोगे आप। और तीसरी ऑप्शन ये है कि वो स्टेट जो है एंटिसिपेटरी उसकी बेल कैंसिल कराने के लिए इन चीज़ों इन फैक्ट्स के ऊपर तो बेल वैसे ही कैंसिल हो जाएगी उसकी, अगर वो कोर्ट में नहीं आता तो बेल वुड बी कैंसिल्ड। ये तीनों ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। हाँ जी। So the next question is question number 19. If after release of the accused on anticipatory bail, the accused does not appear before trial court for its proceedings, and the other accused already appearing before the trial court says that the said accused has left for Canada on a study visa. So now whether the trial court can declare the accused proclaimed offender or proclaimed person? हाँ, ये तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया मिलता जुलता ही है उससे। Right. After release of the accused on anticipatory bail, the accused does not appear before the trial court for its proceedings and other accused already. इसका मतलब ये पेश ही नहीं हुआ। अगर पेश ही नहीं हुआ तो फिर आप बेलेबल वारंट्स निकालेंगे उसके, और अगर वो पेश हुआ तो फिर आप वैसे ही उसके बॉन्ड फॉरफीट करके 446(1) वाला प्रोसीजर कि वो प्रोविजन जो है उसको फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं हुआ तो बेलेबल वारंट्स की पावर है आपके पास निकालने की, उस पर जो रिपोर्ट आएगी या तो वो आ जाएगा, नहीं तो रिपोर्ट आएगी। और तीसरा हुआ है कि उसकी जैसे एक्यूज्ड हैज लेफ्ट फॉर कनाडा, अगर वाकई वो कनाडा चला गया है तो देन ही शुड बी डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ऑफ कोर्स ही शुड बी। उसके लिए आपको द मैजिस्ट्रेट हैज टू टेक एविडेंस अंडर सेक्शन 82, जिसमें एविडेंस चाहे वो प्रोसेस सर्वर का है या किसी और है, जिसमें ये एविडेंस अगर आ जाता है कि ही इज अब्सकॉन्डेड or that he is concealing his presence, then proclamation can be issued against him and he can be declared a proclaimed offender. No bar in that. Can be done. Anji. Right, sir. So next question, question number 20. Whether regular bail can be granted by a magistrate if anticipatory bail is not granted by the Honorable High Court or Supreme Court and the petition for anticipatory bail is disposed of and nothing is pending there. हाँ, ये है कि किसी ने एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाई सुपीरियर कोर्ट में, वहां से डिसमिस हो गई, कोई पेंडिंग नहीं है, वो नाउ ही कम्स एंड फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर रेगुलर बेल बिफोर योर कोर्ट। तो क्या आप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। थोड़ा सा चीजें तो वही हैं कि जिस पॉइंट पे सुपीरियर कोर्ट ने अगर कोई फाइंडिंग दे रखी है, यू कांट गो अगेंस्ट दैट। सुपीरियर कोर्ट ने अगर उसकी बेल इसलिए उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी कि ये कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत है इस केस में, तो दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बाकी कोई भी जो चीजें ऑलरेडी वहां पर पॉइंट्स रेज किए गए जो उन्होंने डिस्कस करके और एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है उसकी, उन बेसिस पे तो रेगुलर बेल नहीं मांग सकता वो। उनसे हट के कोई चीज है अगर उसके पास कोई नया ग्राउंड है तो उस बेसिस पे ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन। और बहुत सारे केसेस में तो एंटिसिपेटरी बेल डिसमिस करके वो कहते हैं गो एंड फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रेगुलर बेल।
जाइए नीचे जाके रेगुलर बेल लगाइए। जो ये कहते हैं एंटीसिपेटरी नहीं बनती इसमें, आप सरेंडर करिए और रेगुलर बेल लीजिए। ऐसे बहुत सारे केस। तो वो देखना यही है कि उन्होंने अगर किसी पॉइंट पे फाइंडिंग दे रखी है, कोई डिसाइड कर रखा है किसी पॉइंट पे, कोई उन्होंने पॉइंट रेज किया था उसने, उस पॉइंट पे तो मिलेगी नहीं इसको बेल, डिफरेंट पॉइंट पे मिलेगी किसी और पॉइंट पे अगर वो फाइल करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? Right, sir. Question number 21. Accused is on bail during trial, and it has been found during trial that the case ought to be committed under section 323 CRPC. Now, whether the accused be given opportunity to file anticipatory bail application to get bail for the offence after informing him that case will be committed on a particular date, or that he is to be arrested on the date of pronouncement of order without giving opportunity. मान लीजिए आपके पास ट्रायल पेंडिंग है और सैग एंड पे जाके आपको पता चलता है इस केस के अंदर एक्चुअली ऑफेंस जो है ना वो ट्राइबल पे सेशन कोर्ट बन रहा है कोई ना कोई ऑफेंस। तो उस सिचुएशन में दो चीजें हो सकती हैं। देखिए, अगर वो कौन सा ऑफेंस बन रहा है, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो जिनमें लाइफ और डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ की पनिशमेंट नहीं है, वो भी ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है। कुछ ऑफेंसेस काफी हैं ऐसे ऑफेंसेस। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है तो उसको आप भी उसमें कंसिडर कर सकते हैं उसकी एप्लीकेशन फॉर रेगुलर पे। परंतु अगर 437 में जो लिमिटेशंस हैं, जैसे कि भाई एनी ऑफेंस विच इज एनी ऑफेंस विच एज अ सेंटेंस ऑफ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसमें मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो उसमें तो फिर वो सेशन कोर्ट ही कर सकता है, आप तो कर नहीं सकते उसमें। तो ये कि उनको बताना है या उसको मौका देना है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ना कोई अथॉरिटी ऐसी है मेरी नज़र में, और स्टैट्यूट में तो कहीं है ही नहीं प्रोविजन। you will not be able to help him in that matter डायरेक्टली। ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे आप कि हाँ जी आपको उनको मौका दे रहे हैं। अगर उसको खुद अंदेशा है, वो खुद एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाना चाहता है, वो उनको पता होता है लॉयर्स को कि कैसे लगानी है, कब लगानी है, तो दे कैन डू इट। बट कोर्ट को ऐसा कुछ करना है, ऐसा कोई लॉ नहीं। देयर इज नो सच लॉ कि कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू दैट पर्सन कि आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। ऐसा नहीं। रेगुलर बेल की पावर जो आपके पास है, अगर वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें, 437 की नहीं आती, तो आप रेगुलर बेल दे सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो जो आदमी पिछले कुछ सालों से आपके पास ट्रायल में चल रहा था एंड ही हैज नॉट मिस यूज द कंसेशन ऑफ बेल, तो उसको आगे बेल देने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, दी जा सकती है। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्या है? सर, क्या इस केस में दोबारा बेल की जरूरत पड़ेगी? इफ ही इज ऑलरेडी ऑन बेल, उसको दोबारा बेल एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी? हाँ, यस यस, पड़ेगी बिल्कुल। अब जैसे उसमें अब उसके पास ऑफेंस 326 का था और अब 307 बन गया, तो उसकी बेल तो 326 में है ना, 307 में तो नहीं है उसकी बेल। Right. Thank you, sir. So we move on to question number 22. Can a sessions court grant transit anticipatory bail? Okay. ये और दूसरा भी क्वेश्चन पढ़ दो, इकट्ठे ही है मेरे ख्याल में। Question number 23. Can sessions court grant anticipatory transit bail in cases like offence committed in Delhi and arrest apprehended in Punjab? Accused apprehended in Punjab? नहीं, अरेस्ट ही है, अरेस्ट अप्रीहेंडेड, अरेस्ट अप्रीहेंडेड। ये ऐसे है इसमें दो चीजें। एक तो ट्रांजिट की बात कर रहे हैं ना, ट्रांजिट एंड एंटीसिपेटरी। पहले एंटीसिपेटरी बेल का देख लेते हैं क्या पोजीशन है। खाली एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन, इस पे डिफरेंट हाई कोर्ट्स की डिफरेंट व्यूज है। जो जैसे क्वेश्चन ये 23 में इन्होंने क्वेश्चन पोज किया है ना, अभी अगर मान लीजिए ऑफेंस दिल्ली में हुआ है और वो कहता है चंडीगढ़ में आ गया, वो कहता मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरे को यहाँ अरेस्ट करने आ रहे हैं, तो मेरे को एप्रीहेंशन चंडीगढ़ में है, तो जब मेरे को चंडीगढ़ में एप्रीहेंशन है तो मैं यहाँ एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ।
ये सिचुएशन अराइज होती है कई बार। तो वो अगर वो मान लीजिए एप्लीकेशन लगाता है, तो हमारे हाई कोर्ट की जो व्यू है वो ये, हमारे हाई कोर्ट की व्यू है कि नहीं लगा सकता। बाकी बहुत सारे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट है, कुछ और भी हैं 2-3 हाई कोर्ट जिनकी कॉन्ट्ररी व्यू है, जो कहते हैं जहां एप्रीहेंशन उसको हुई वहां भी लगा सकता हो। अब सेक्शन 438 में वर्ड तो सिर्फ लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को पावर है एंटीसिपेटरी बेल देने की। उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है कि हाई कोर्ट कौन सा हाई कोर्ट और कौन सा सेशन कोर्ट। तो हमारे हाई कोर्ट ने तो इंटरप्रिटेशन ये की है कि हाई कोर्ट वही जिसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर ऑफेंस हुआ, वो हाई कोर्ट का मतलब वही है। इसलिए अगर ऑफेंस हमारी जुरिसडिक्शन में हुआ है तो तभी हम पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वो हमारी जुरिसडिक्शन से बाहर हुआ तो फिर नहीं हम कर सकते। दिल्ली में अगर हुआ तो वी नॉट हैव द पावर टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438। ओके, एक चीज तो ये है। उसके हाँ, ये जजमेंट्स भी शायद इनको इंटरेस्ट होगा उसमें। जो अपने हाई कोर्ट की जजमेंट्स है ना, दो इस पॉइंट पे, एक 1984 की है कि 1994 की है। 1984 क्रिमिनल लॉ जर्नल, 1984 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 714, और दूसरी है 1994 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 3134। तो हमारे हाई कोर्ट की तो कंसिस्टेंट व्यू यही है अभी तक कि ये यहाँ नहीं लाइक करते। पर इसमें कंफ्यूजन यहाँ से होती है कि बहुत सारे आप ऑर्डर पढ़ते रहते हो कि हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दी, ट्रांजिट बेल दे दी, वो दे दिया। तो वो जो ट्रांजिट बेल देता है हाई कोर्ट, वो अपनी इनहेरेंट पावर्स में देता है। 482 में दे सकता, 438 में नहीं देता, ना दे नहीं सकता, क्योंकि हमारी हाई कोर्ट की व्यू यही है। 438 में हम नहीं दे सकते। हाँ, 482 में ट्रांजिट बेल दे देते हैं, इनहेरेंट पावर्स यूज करते हैं। तो इनहेरेंट पावर्स यूज करके हाई कोर्ट जो है ट्रांजिट बेल दे सकता है। अब क्वेश्चन सेशन कोर्ट का है इनका, तो सेशन कोर्ट के पास तो कोई इनहेरेंट पावर भी नहीं, इसलिए वो 438 अलाउ नहीं करता। जैसे हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये तो जिसकी जुरिसडिक्शन में है वही कर सकता है। तो सेशन कोर्ट विल नॉट बी एबल टू पास एन ऑर्डर ऑफ एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल। हाई सेशन कोर्ट नहीं कर सकता। ट्रांजिट बेल एक ही है सेशन कोर्ट के पास, एक ट्रांजिट बेल है, कई बार उससे भी कंफ्यूजन हो जाती है। वो कौन सी है? वो है सेक्शन 81 में। सेक्शन 81 में जहां पर अगर मैजिस्ट्रेट ने मान लीजिए वारंट्स निकाले हैं अपनी लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर किसी को अरेस्ट करने के लिए, तो उसकी लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर किसी को अरेस्ट किया जाता है उस वारंट के बेसिस पे, तो वो व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, he can move the CJM or the session court of that area बेल के लिए, और वो उसको बेल दे सकते हैं। तो इन दैट सेंस, बट दैट इज नॉट एंटीसिपेटरी, क्योंकि वो तो अरेस्ट के बाद है ना, इसलिए हम उसको ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल नहीं कहेंगे। वो तो उसको अरेस्ट होने के बाद उसको बेल मिली, और मिली इसलिए कि वो ताकि वो जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है उसके पास पेश किया जा सके। तो यहाँ तक पावर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सेशन कोर्ट के पास। So that is the only power. तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर हो गया आपके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है करना? Sir, question number 24. When a person applies for anticipatory bail before Honorable High Court and gets an order of interim bail for time being till the application for anticipatory bail is pending, on the basis of this interim bail order, the person gets the bail from trial court. But ultimately, anticipatory bail application is dismissed by the High Court. Whether bail given by the trial court will sustain or automatically suspended. Cancelled, automatically cancelled. ऐसा है कि हमने लास्ट डेट पे ना इस पे दो जजमेंट्स डिस्कस की थी हमने। एक थी सतपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सतपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये है AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट
पेज 2011 और दूसरी जजमेंट है रुक्मणी महातो वाला केस है 2018 वॉल्यूम 2 RCR क्रिमिनल पेज 817। इन दोनों जजमेंट्स में इसको चीज को बहुत एम्फसाइज किया गया, एक्सप्लेन किया गया है इस चीज को। ये रुक्मणी वाला केस सर्कुलेट भी हुआ था, ये जब आई रिमेम्बर दैट ये जजमेंट सर्कुलेट की गई थी। बहुत सारों कई बार ऑफिसर्स को गलती लग जाती है। अब ये क्या करते क्या हैं लोग कि वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगा रखी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल का ऑर्डर कर दिया। अब वो इंटरिम बेल का ऑर्डर लेके आ जाते हैं नीचे और ट्रायल कोर्ट में आके कहते हैं देखो ये हमारे तो सुप्रीम कोर्ट से ये बेल हो रखी है, तो हमने बॉन्ड फर्निश करने हैं। और कोर्ट उसको गलतफहमी में उसको पता नहीं कैसे इंटरप्रेट कर लेते हैं उसको और वो बेल ले लेते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता रहा। अब ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो रीजनिंग तो क्लियर है, हमने पहले भी डिस्कस किया ये पॉइंट कि अभी एप्लीकेशन वो डिसाइड तो हुई नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक इंटरिम बेल का ऑर्डर किया है। द मैटर इज स्टिल पेंडिंग विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज स्टिल सीज्ड ऑफ दैट मैटर। इसको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो उनके डिसाइड करने से पहले हमने डिसाइड कर दिया नीचे कि हाँ भी हम तेरे को मिलनी चाहिए भी। तो वी कांट डू दैट। जब तक मैटर वहां पर पेंडिंग है तो वहां हम उसको बेल नहीं दे सकते इन एनी फॉर्म। इसलिए अगर वो इंटरिम बेल लेके कोई अगर आ जाता है तो इट हैज टू बी रिजेक्टेड। उसको कहना पड़ेगा अभी जब तक वहां डिसाइड नहीं होती उसके बाद बात करना, तब तक तो हम कर ही नहीं सकते इसको। वी कांट डू दैट। तो इसलिए ये वो जजमेंट दोनों देख लीजिए। अच्छा, ये कैंसिलेशन वाली बात पूछी थी इन्होंने, जैसे हाँ कैंसिलेशन ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगी, ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं है। जैसे यही मान लीजिए सतपाल वाला केस है, इसमें भी जो जिसने ऐसे इंटरिम बेल के ऊपर ऑर्डर करा लिया था नीचे से, फिर वो सुप्रीम कोर्ट मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो ऑर्डर किया वहां से कि इसलिए वी आर कैंसिलिंग दैट बेल व्हिच वाज ग्रांटेड बाय द सेशन जज। वहां पर इट हैज टू बी गॉट कैंसिल, ऐसे ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं कि एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होगी तो वो भी होगा। दे ही नहीं सकते, पहली बात तो ये रिजेक्ट क्या होना, आप कर ही नहीं सकते। पर कर दिया तो फिर उसको किसी somebody has to go there and bring it to the notice of the higher court, ये बेल गलत हुई है इसके अंदर, and then it will be cancelled. So मेरे ख्याल इस क्वेश्चन का आंसर शायद हो गया आपका। Question number 25. Interim bail was granted by the Honorable High Court and next date fixed before Honorable High Court is 25th of October 2011. On 11th August 2021, police filed challan and the accused moves regular bail application. Whether to grant bail during pendency of interim bail before the Honorable High Court. ये तो वही है ना, सेम है। यही तो हम एक्सप्लेन किया है इसमें पिछले क्वेश्चन में कि जब तक वहां पर बेल मैटर पेंडिंग है, इंटरिम बेल के बेसिस पे आप नहीं कर सकते उसको। इंटरिम बेल मिली हुई है, अभी मैटर पेंडिंग है, बीच में चलान आ गया, चलान के बेसिस पे आप वो एप्लीकेशन लगा रहा है कि मेरे को जी रेगुलर बेल दे दी जाए, तो इट कैन नॉट बी ग्रांटेड बिकॉज दिस पीरियड कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर कि उसको बेल मिलनी है या नहीं मिलनी। इट कैन नॉट बी ग्रांटेड, आपको वेट करनी पड़ेगी और डिसमिस करनी पड़ेगी आपको। Sir, I think then in view of this answer, question 26 and 27 also stands answered. Question 26 is in case accused on the basis of interim bail order demands bail from the trial court, what is to be done? It is definitely to be done. It is to be dismissed. It is to be dismissed. इसमें हमें सिर्फ अगर लिखना है तो उसको दोनों जजमेंट का हवाला दे दीजिए इसमें से और डिसमिस कर दीजिए, भी हम कर ही नहीं सकते इसको। अगला The next question is it legal to grant regular bail on the basis of interim bail when the considerations for anticipatory bail and regular bail are different? ये भी वही सेम है।
Is it legal to grant regular bail on the basis of interim bail? No, absolutely no. इंटरिम बेल के बेसिस के ऊपर थोड़ी आप रेगुलर बेल दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते. यू कांट डू इट. उससे क्या नेक्स्ट थिंग? The next question, so somewhat related query, that accused on interim anticipatory bail granted by the higher court. Meanwhile, challan is presented before the trial court. Accused come present at the time of filing of challan and moves an application for bail. The bail application has to be decided preferably within 7 days, but the next date of hearing before the higher court is longer. So how to proceed? वो तो ये शायद इनको यही अप्रीहेंशन है कि 7 दिन का टाइम फिक्स किया हुआ, तो उसमें क्या करें? करना तो यही है उसमें कि आप उसको डिसमिस कर दीजिए. आपका तो डिसाइड होगी उसमें एप्लीकेशन जो लगाई थी उन्होंने. यू डिसमिस दैट एप्लीकेशन विद इन 7 days ऑन दिस ग्राउंड क्योंकि मैटर अभी वहां पर पेंडिंग है, तो आई कांट डू इट. तो एप्लीकेशन इज डिसाइडेड. 7 दिन का तो उसमें कुछ झगड़ा नहीं पड़ेगा. आगे क्या है? In case the accused has been released on interim anticipatory bail by Honorable High Court, and the IU presents charge sheet before the magistrate, sir, I think this is the same question. Accused is also present, he seeks regular bail. What should the magistrate do? वही है ये interim bail के बेसिस. So we move on to question number 30th then. Question number 30th. What should be the criteria, principles for the grant of interim bail before magisterial courts during pendency of regular bail pending before said court? ये डिफरेंट है. अब ये रेगुलर बेल की बात आ गई कि रेगुलर बेल की एप्लीकेशन अगर आपके पास पेंडिंग है तो उसमें क्या आप इंटरिम बेल कर सकते हैं? यस, यू कैन डू इट. व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसमें, ये पूछ रहे हैं. क्राइटेरिया तो पहले तो यही देखोगे वो दैट पर्सन शुड नॉट बी इन कस्टडी. अगर कस्टडी में है तो फिर तो सिचुएशन ही अलग होगी ना. अगर वो बाहर ही है अभी और उसको पेश कर दिया और आप एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट वाला क्या है उसमें शायद कुछ ऐसा ही है. नेक्स्ट भी पढ़ दो वो भी. हाँ, इसके साथ. Question number 31. An FIR is registered under section 186, 323, 332 and 353 IPC. The police produces the accused along with the challan and accused moves regular bail application. Whether it is judicious in such like case to send accused to custody and issue notice of bail to state for 2 days. Accused was not arrested by police in this case. अब ये accused को अरेस्ट नहीं किया पुलिस वालों ने, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, चालान फाइल कर दिया. अब वो accused आपके सामने खड़ा है और उसने एप्लीकेशन लगा दी रेगुलर बेल के लिए. लगाएगा ही नेचुरली. बेल लगाई आपने उसको नोटिस दे दिया पीपी को 2 दिन का. अब वो जो सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको पुलिस वालों ने कस्टडी में नहीं लिया, तो क्या ये जस्टिफाइड होगा? क्या उसको आप अंदर भेज दीजिए और फिर 2 दिन के बाद उसको बेल दे दीजिए कि हाँ जी तेरी बेल है. तो ये इसी चीज को देखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है ना, 2 जजमेंट्स, वो इन्हीं पॉइंट्स पे हैं कि वो लोगों, बहुत सारे लोग हैं रिस्पेक्टेबल हैं और वो एक बारी अंदर चले जाएं तो उनका जो दाग लगता है वो कई बारी तो सोसाइटी में मिटता नहीं है. तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए. और उन्होंने ये भी कह दिया भी ये इनहेरेंट, इसको वर्ड तो उन्होंने कह दिया भी आपके पास ये पावर है, जिसके पास रेगुलर बेल की पावर है उसके पास उसको इंटरिम बेल देने की पावर भी है. जैसे कि वो 125 में हुआ था. 125 में पहले इंटरिम का प्रोविजन नहीं था. उन्होंने कहा जहाँ मेंटेनेंस दे सकते हैं 125 CRPC में, तो वहाँ इंटरिम भी दे सकते हैं. तो ऐसे ही इसमें ये इसके ऊपर 2 जजमेंट्स हैं, दोनों आप पढ़ सकते हैं इसमें. एक तो ये सुखवंत सिंह है, सुखवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ये है 2009 की, वॉल्यूम 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज 559. और दूसरी है मुकेश किशनपुरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2010, वॉल्यूम 15 सुप्रीम कोर्ट केसेस 154. तो दोनों हैं, दोनों पे सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार कह दिया भी आप इंटरिम बेल की पावर भी यूज किया करो.
कई बार आप अननेसेसरली लोगों को अंदर भेज देते हो और फिर उनको जो बाहर आदमी है और बाकी सारी चीज़ें देखोगे ही नेचुरली यार, कंसिडरेशन तो सारी रहती हैं कि कैसा ऑफेंस है, क्या सिचुएशन है। जैसे ये अब सेकंड केस में बुला रखा है, अभी उसको पकड़ा ही नहीं, सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको अरेस्ट नहीं किया, पुलिस वालों ने नहीं किया। और ऑफेंसेस भी कुछ ऐसे हैं, हरनेश कुमार भी है आपका, हरनेश कुमार वाली जजमेंट भी तो कंसिडर करोगे आप। हरनेश कुमार वाला केस है, उसमें पुलिस वाले भी अरेस्ट नहीं कर सकते और आपको भी आपकी ड्यूटी भी लगा रखी है, अभी आप चेक करो कि ये पुलिस वाले उनको लोगों को गलत अरेस्ट ना करें, जिसमें 7 साल से नीचे वाले केसेस जितने हैं। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, उनमें आप अगर आप बेल एप्लीकेशन उसी दिन नहीं डिसाइड कर सकते और आगे उसको आप अर्जन कर रहे हैं उसको, तो उसको अंदर मत भेजिएगा। अगर हाँ, अगर कोई ऐसा है सिचुएशन में लग रहा है ये इसको भाग जाएगा या कुछ और गड़बड़ करेगा, तब तो आप नेचुरली आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन एक्सरसाइज दिस पावर, ये आपके पास पावर अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्या है? सर एक मेरी क्वेरी है सर, 498A के केस में जब हस्बैंड को पेश किया जाता है और आईयू एप्लीकेशन लगाता है पुलिस रिमांड की कि हमें डाउरी आर्टिकल्स रिकवर करने हैं, ऑन द कॉन्ट्री वो एप्लीकेशन लगाता है बेल की, तो सर क्या इस केस में भी पुलिस और एंड ही इज रेडी फॉर द रिकवरी, वो कहता है कि मैं रिकवर कराने के लिए तैयार हूँ, मुझे टाइम दिया जाए, तो सर क्या इसमें पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए भी इंटरिम बेल दी जा सकती है? दिस इज ऑल्सो वन सिचुएशन जहाँ पे इंटरिम बेल दी जा सकती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप इसमें, ये 498A और 06 में पहली चीज तो ये हरनेश कुमार वाले केस से ही कवर्ड है। ये हरनेश कुमार वाले के क्योंकि 7 साल से कम सजा वाले ही है ना, दोनों 3-3 साल वाले हैं ये दोनों ही ऑफेंसेस, 406 498। और हरनेश कुमार कहता है उनको अरेस्ट आप नहीं करना आपने अनलेस ये क्राइटेरिया इनको फुलफिल करते, तो उसमें अगर वो मान लीजिए अरेस्ट करके ले आते हैं आपके पास, मैं उससे भी काउंटर आपके ये प्रोपोजिशन में कुछ ऐड कर रहा हूँ। अगर उन्होंने ऐसे केस में अरेस्ट कर लिया और आपके पास यू आर द मैजिस्ट्रेट, आपके सामने पेश किया, भाई इसको क्यों अरेस्ट कर लिया आपने, इसमें से वो 3 साल की सजा क्यों कर रहे हो इसमें अरेस्ट आपने, कहेंगे जी इससे तो अभी हमने डाउरी आर्टिकल रिकवर करने हैं, जैसे ये कहते हो। तो डाउरी आर्टिकल रिकवर करने के लिए एक आदमी को अंदर रखना जरूरी नहीं। अगर गुरबख्श सिंह सीबिया पढ़िए आप, तो गुरबख्श सिंह सीबिया में तो उन्होंने ये कहा भी आप एंटीसिपेटरी बेल भी दे सकते हो, अगर वो पुलिस वाले ये कहते हैं कि जी हमने तो अभी इससे रिकवरी करनी है, ये नहीं कहते कि हर केस में कर दो, मतलब कि कर सकते हो ये कहते हैं। वो कहें कोई रिकवरी करनी है तो सेक्शन 27 का क्या होगा, क्योंकि जो जो कस्टडी में अगर नहीं होगा एक्यूज तो 27 की हमें प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, वो एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसमें उन्होंने कहा कि जब एक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल हमने दे दी एंड ही जॉइंस द इन्वेस्टिगेशन and during that investigation he makes a disclosure statement leading to discovery, तो वो जो डिस्कवरी है वो व्यक्ति जो है he is in deemed custody of the police, he is in deemed custody of the police, और सेक्शन 27 उस पर अप्लाई करेगा, वो एडमिसिबल होगी स्टेटमेंट इन एविडेंस, इसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया। तो इसलिए ये कहना कि डाउरी आर्टिकल हमने रिकवर करने हैं वो जरूरी नहीं है, उस पर डाउरी के लिए उसको कस्टडी में ही रिकवर होंगे, वो वैसे भी रिकवर हो सकते, तो नॉर्मली तो हो ही सकते हैं, पता नहीं कोई एक्सेप्शनल केस हो तो अलग बात, नॉर्मली हो सकते हैं, तो ये उनकी प्रेयर रिजेक्ट की जा सकती है। Right, sir. So moving now to question number 32. Explain if first regular bail application of the accused is dismissed by ASJ and Honorable High Court grants bail to first accused, whether co-accused whose regular bail was dismissed by the Sessions Court can file second application for regular bail on the basis of parity before the Sessions Court. Yes. ये मेरे ख्याल क्वेश्चन ये भी 3-4 है इसमें। अच्छा, पैरिटी क्या होती है, पहले तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि पैरिटी क्या है।
पैरिटी में हम ये खाली इसकी ये ऑफेंस नहीं दे सकते कि हम दोनों ये भी 307 के केस में, ये भी 307 के केस में ही है सारे, वो नहीं है पैरिटी। पैरिटी मान लीजिए और एक 307 के केस में एक आदमी तो साथ खड़ा था और दूसरा आदमी जो वो गंडासियां मार रहा था, सारी इंजरीज दूसरे ने कॉज की हैं, ये तो साथ ही खड़ा था उसके। अब दोनों का रोल डिफरेंट हो गया उसमें। अब वो दूसरे वाला जो साथ खड़ा था वो हाई कोर्ट चला गया, उसको तो बेल मिल गई। अब दूसरा आ जाए पैरिटी के बेस पे कि मैं उसको मिल गई तो मेरे को भी दो, तो पैरिटी नहीं है। इट्स नॉट अ केस ऑफ पैरिटी। उसका रोल अलग है, उसका अलग है। ऐसे ही उसका चांसेस ऑफ एब्सकॉन्डिंग जो है, एक व्यक्ति जो है जो बेल दे रहा है, ही इज इन अ वेरी गुड गवर्नमेंट जॉब, फैमिली मैन है, मैरिड है, बच्चे हैं, और दूसरा जो वो अनमैरिड है, कोई जॉब नहीं है, कोई घर नहीं है, उसका ऑफेंस एक ही है। वी कांट से दे आर के पैरिटी है दोनों पे, एक ही सिचुएशन। वी हैव टू सी ऑल दोज थिंग्स। यू कैन नॉट बी ऑन पैरिटी कि सिर्फ एक केस में है तो इसलिए हम पैरिटी में, भाई इसको मिल गई तो हमें भी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। तो दे शुड बी ऑन पैरिटी ऑन ऑल दोज एस्पेक्ट्स, वो सारी चीजें देखनी। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन ये था कि वो इफ हाँ कि उसको हाई कोर्ट ने अगर बेल दे दी, दूसरा क्या है रेगुलर बेल एप्लीकेशन उसकी जिसकी हमने डिसमिस की हुई है, वो इस ग्राउंड पे लगा सकता है कि भी अब दूसरे को हाई कोर्ट ने दे दिया तो मेरे को भी दो। हाँ, तो लगा सकता है, क्यों नहीं लगा सकता। पर उसमें आप देखना पड़ेगा कि उसका ये ना हो जैसे पैरिटी वाली बात हमने की है कि उसका रोल बहुत ज्यादा ग्रीवस हो, उसका कुछ ना हो। अगर उसका रोल भी वैसा ही है या उससे कम है तो फिर तो मिलेगी उसको बेल, क्योंकि हाई कोर्ट से मिल गई है, तो आप उसको भी दोगे बेल। अगर उसका रोल डिफरेंट है या उसकी सिचुएशन एंटीसीडेंट्स डिफरेंट है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या कुछ है, तो फिर नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। यू हैव टू कंसीडर ऑल दीज थिंग्स कि देनी है या नहीं देनी, तो मिल सकती है। यही क्वेश्चन था ना सर? जी 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 सर। क्वेश्चन 33, इन केस अंडर सेक्शन। अच्छा, एक चीज मेरे को और याद आ रही है इसमें, ये पैरिटी का एक क्वेश्चन, ये इसमें इंटरेस्टिंग था। ये केस अभी ये 2021 का ही है, गिरिराज वर्सेस किरण पाल। ये मार्च 2021 में डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट से। उसमें हाई कोर्ट में एक आदमी गया एक्यूज और उसको बेल मिल गई, तो उसमें 5 एक्यूज और थे, वो भी अपना बारी बारी जाते रहे कि जी मेरा उसको बेल दे दिया, हमें दे दो। सबको मिल गई ऑन बेसिस ऑफ पैरिटी। अब जिसको पहले बेल मिली थी वो उसके अगेंस्ट स्टेट चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी बेल वहां कैंसिल हो गई। अगर उसकी बेल कैंसिल हो गई तो फिर उसके बाद अब क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तो कैंसिल नहीं होती, फिर उन्होंने एप्लीकेशन बाकियों की भी लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यही लिखा है कि क्योंकि पैरिटी पे उनको बेल मिली थी, तो अब ये कैंसिल उसकी कैंसिल होगी, तो इसलिए इनकी भी कैंसिल होगी। क्वेश्चन ऑफ पैरिटी दोनों तरफ चलती है। फिर अगर पैरिटी भी आपने बेल ले रखी है तो पैरिटी पे फिर कैंसिल भी होगी उनकी, तो इट गोज बोथ वेज। पैरिटी भी उनकी खत्म भी करती है। ओके, आगे क्या? Sir, I think in such cases, besides looking into the facts and circumstances, we also have to look into the grounds on which the bail has been granted. Yes. Maybe the ground on which one accused has been granted bail is different. वही है ना चीज देखने वाली। वो ग्राउंड तो वही होगा ना, उसके भी इसका रोल डिफरेंट था, इसके एंटीसीडेंट्स डिफरेंट है, इसके ये चीज डिफरेंट है, वही होगा ना कुछ ना ग्राउंड। तो वो चीजें सारी देखनी पड़ेंगी जो मैच नहीं कर रही दूसरे के साथ। Next is question number 33. In case under section 302 IPC, bail was declined by learned AST on merits, and after 15 days, bail application of a co-accused on similar allegations is allowed by Honorable High Court. Will it be justified to again consider afresh the bail application and allow bail on parity? ये तो वही है same. Next question, sir. Question number 34. Can accused file successive anticipatory bail application? If yes, what are the grounds? If not, why? देखो, बेसिक लॉ तो यही है शुरू से ही कि एप्लीकेशन आप जितनी मर्जी लगा लीजिए, ये कोई इसमें लीगल बार कोई नहीं है। ये मेरे ख्याल सबसे पहले जस्टिस कृष्णा अय्यर की जजमेंट है, बाबू राम वर्सेस क्या नाम था उसका, बाबू राम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। वहाँ
उस जजमेंट में भी ये लिखा 1978 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 579 बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और सैकड़ों जजमेंट्स हैं, एक का जजमेंट है, उसके बाद हर केस में दूसरी तीसरी चौथी लगती रहती है। तो कोई बार है सच नहीं है, देयर इज नो बार है सच कि आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, पर बहुत सारे झगड़े पड़ते हैं। अब जैसे एक रिसेंटली जजमेंट आई है, उसमें GR आनंदा वर्सेस तमिलनाडु, ये अभी इसी ये जनवरी की थी, लास्ट जनवरी, उसमें ये इस केस में जैसे वो एंटीसिपेटरी बेल में एप्लीकेशन लगाई है, एक रिजेक्ट हो गई, तो दूसरी उसने दूसरे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये फोरम हंटिंग जिसको कहते हैं, फोरम हंटिंग वाले के पॉइंट पे की थी कि लोग जैसे करते हैं, एक से नहीं मिली तो दूसरे, तो लॉ तो यही है कि जिसने पहली डिसमिस की है, पहली डिसाइड की है, दूसरी भी वहीं लगेगी जाकर, उसी कोर्ट को करनी होती है दूसरी की एप्लीकेशन उस मैटर में। डिफरेंट कोर्ट में नहीं जा सकती अनलेस दैट जज इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी रीजंस। कभी दूसरी कोर्ट में जाती है, अदरवाइज उसी कोर्ट में लगनी चाहिए। बट एनीवे ही मैनेज्ड, उसने मैंने दूसरी कोर्ट में लगवा ली, वो वहां भी खैर खारिज होगी दूसरी वाली में भी। फिर उसके 6 महीने बाद तीसरी लगा दी, वही सेकंड कोर्ट में, जो सेकंड कोर्ट थी, और इस बार सेकंड कोर्ट ने उसको बेल दे दी 6 महीने के बाद, एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि 1 साल से केस चल रहा है, 1 साल से वो बाहर ही घूम रहा है। ही इज वांटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, ही हैज नॉट जॉइंड इन्वेस्टिगेशन, 1 साल से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहा, एप्लीकेशन लगाता है, पहली लगाता है, दूसरी लगाता है, तीसरी लगाता है, तीसरी में ही मैनेजेस समहाउ, और उसमें ग्राउंड क्या भी है, 70 साल का है, इसको कुछ ना कुछ एलिमेंट रहती है, और 1 साल हो गया कि इसको, अब इन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी ये ग्राउंड थोड़ी बनते हैं जो बेल लेने वाली, पहली बात तो ये दीज आर नॉट ग्राउंड, एंड दे हैव सेड कि हमें एंटरटेन रिपीट सक्सेसिव एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करनी चाहिए, ये वर्ड यूज किया उन्होंने, ये पॉइंट नहीं उन्होंने डिसाइड किया कि सक्सेसिव एप्लीकेशन लाई नहीं करती, एंटरटेन नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए, वाकई नहीं करनी चाहिए, कि ऐसे मामलों में, मोर ओवर इन सच केसेस कि जिसमें आप बाहर घूम रहे हो 1 साल से, इन्वेस्टिगेशन आगे चल नहीं रही, कोई रीजन नहीं है, तो आपको, और एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाते जा रहे हो, सच एप्लीकेशन शुड नॉट बी एंटरटेन। अदरवाइज बेसिक लॉ तो वही है कि एप्लीकेशन लग सकती है आपकी, बट नॉट ऑन द सेम ग्राउंड। अगर कोई आपके पास फ्रेश ग्राउंड है जो पहले नहीं था, उस बेसिस पे आप लगा सकते, इट कैन बी। ओके, Question number 35. Whether it would be advisable to take an affidavit of both the accused as well as his counsel to apprise the court regarding the pendency of or the final disposal of bail application filed before any other competent court. हाँ, ये बहुत झगड़ा रहता है ना, कि लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ एक एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग है, एक दूसरी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और वो हाई कोर्ट जज साहब जब बेल सुनने लगते हैं तो उनको पता लगता है वो तो मैजिस्ट्रेट ने कर दी थी बेल, वो कैसे कर दी कि जी वहां लगाई थी हमने, ऑर्डर कर दी। अब मैजिस्ट्रेट क्या करे, मैजिस्ट्रेट को पता ही नहीं भाई इसने हाई कोर्ट में लगा रखी है बेल, तो इसलिए अब ये वो सर्कुलेट की गई है जो मेरे शुड बी नोन टू एवरीवन कि विजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। विजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में उन्होंने ये डायरेक्शंस इशू की हैं कि बेल एप्लीकेशन जो भी फाइल होती है उसमें ये मैंडेटरी है कि वो लिखे कि मेरी कोई और एप्लीकेशन बेल की कोई मैंने सुपीरियर कोर्ट में लगाई है या लगाई थी, और उसका क्या हुआ, या कोई पेंडिंग है तो कौन सी डेट में पेंडिंग है, ये मैंडेटरी है। अगर उसमें नहीं लिखा हुआ तो वापस करिए उसको, और उसको कहिए इसमें लिख के ला, उसमें लिखे कि मेरी कोई एप्लीकेशन ना मैंने लगाई है ना मेरी कोई पेंडिंग है, तो ये कंपलसरी है उसके लिए। और दूसरा उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की भी ड्यूटी बनती है ये, वो अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से पता करके कोर्ट को बताएं कि इसमें ऑलरेडी एप्लीकेशन किसी ने लगा रखी है। जिसमें भी जो भी एप्लीकेशन लगती है तो उनको तो पता ही होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, अगर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी किसी ने, कहीं लगाई है, तो उनको नोटिस अगर आया हुआ तो वो बताएं कि जी ऐसे ऐसे वो हाई कोर्ट से भी नोटिस आया हुआ है या हमारी ऐसी एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो ये उनकी ड्यूटी भी बना रखी है कि वो ये बताएं। ये इसलिए
ये एफिडेविट वर्ड तो नहीं यूज किया उन्होंने ये कहा कि उसमें एप्लीकेशन में लिखना जरूरी है, मैंडेटरी। नहीं लिखा हुआ तो वापस करिए। हाँ जी, नेक्स्ट। The next question, question number 36. To what extent the merits of the case can be considered while deciding the bail application? हाँ, ये अगला भी पढ़ लीजिए फिर इसके साथ ही। Question number 37. Sometimes police wrongly add section 467 IPC in remand papers just to enhance the gravity of the offence. At the time of dealing bail application, whether finding of no cases made out for section 467 can be given? बिल्कुल दी जा सकती है, पर ये है इसमें लॉ बेस्ड, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस अलाउड नहीं है। डिटेल्ड आपकी अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस मटेरियल जो है ना, वो लिमिटेड पावर है। आपने उसको सिर्फ ये देखना है एज इट इज ऑन द वेरी फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। उसकी क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करनी आपने। बेल की स्टेज पे यू कांट क्रिटिकली एनालाइज दी, जैसे आप कन्विक्शन या फाइनल स्टेज पे करते हैं, दैट कैन नॉट बी डन ऑन द वेरी फेस ऑफ द रिकॉर्ड। अगर आपको लग रहा है कि ये 467 तो इसमें इंग्रेडिएंट ही नहीं है इसमें, यस यू कैन डू इट, यू कैन से दैट। बल्कि ये तो जरूर मैंडेटरी है। कोई भी अगर आप बेल एप्लीकेशन वगैरह कोई डिसाइड करोगे तो उसमें अगर प्राइमा से इंग्रेडिएंट ही नहीं है ऑफेंस के, तो बेल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी उसकी वैसे ही। तो हर ऑफेंस का हम देखना भी, उसको लॉयर भी एक आर्ग्यू करता है 325 के ये तो बनते ही नहीं है, या 467 तो बनता ही नहीं है, 420 बनता ही नहीं है, इसमें इंग्रेडिएंट कहाँ इसमें कहीं है ही नहीं है इसमें। तो यस यू कैन, आप कह सकते हो। बल्कि ये तो देखो 209 में भी है आपके पास पावर। हालांकि 209 में बहुत लिमिटेड पावर होती है कोर्ट के पास। तो जब आप कमिट करते हो केस को, वहां भी एक सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपको ऑन दी फेस ऑफ द रिकॉर्ड लग रहा है भाई ये सेशन ट्राइबल नहीं बन रहा है, 307 लगा रखी है, 302 लगा रखी है, पर आपको क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करनी उसकी, ऑन दी वेरी फेस ऑफ द रिकॉर्ड ही नहीं बनता हो, तो आप उसको यू कैन रिफ्यूज टू कमिट दैट केस। तो ये पावर तो आपके पास हमेशा ही है। 190 में भी जब कॉग्निजेंस लेते हो तब भी तो देखते हो, 190 में कॉग्निजेंस लोगे तब भी तो एनालाइज करोगे, देखोगे उसको कि बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर वो ऑफेंस ही नहीं बन रहा तो आप कहोगे ये तो आई एम नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस, ये तो इसमें तो बनता ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। दैट कैन बी डन। हाँ जी। Right, sir. Next question is also somewhat related. Question 38. If the prima facie offence theory, as laid down by the Honorable Apex Court, to grant anticipatory bail is applicable to regular bail qua offences which are pending before the magisterial courts, what happens in cases where the police add one of the offences which are triable in the court of session, which is prima facie not attracted to the facts? वही है, सेम क्वेश्चन वही है, सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। Question 39. What if a person was granted bail and subsequently another offence was added and accused, arrested and produced before court? Should he be released from custody because no notice was given to him before his arrest? हाँ, ये रीअरेस्ट वाले है ना केसेस। तो ये पहले लॉ इसमें क्लियर नहीं था, वेग था, बहुत कम जजमेंट्स थी इस पॉइंट पे। अब करते क्या था पुलिस वाले के, उन्होंने FIR लॉन्च की और उसमें सेक्शंस कुछ लिख दिए, उसमें उसने बेल करा ली। अब बेल करा के निकला तो उसके 2-4 दिन के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट और लिख ली किसी की, एक विटनेस की, और दूसरा ऑफेंस ऐड कर दिया और फिर अरेस्ट कर लिया उसको। तो इस तरह से उसको जो कोर्ट के ऑर्डर्स को बाईपास करने का एक तरीका बनाया हुआ था उन्होंने, कि इसमें ऑफेंस ऐड कर लो, दोबारा अरेस्ट कर लो, क्या दिक्कत है। उसके अगेंस्ट कुछ जजमेंट्स आई, हमारे हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट थी, राजस्थान हाई कोर्ट की थी, तो ऐसी जजमेंट थी। पर अब वो कंट्रोवर्सी सेटल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, वो आ गया उसका केस जो है प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। 2019
सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन, सुप्रीम कोर्ट 825/825। उसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अगर सब्सिक्वेंटली बेल किसी ने कोर्ट से बेल करा ली, अगर उसके बाद अगर पुलिस वाले को इसमें ऑफेंस ऐड करते हैं तो वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते पुलिस वाले। दे हैव टू सीक परमिशन ऑफ द कोर्ट विच ग्रांटेड हिम बेल। जिसने बेल कर रखी है उससे जाके परमिशन लेनी पड़ेगी उनको। यहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में कि जी हमें इसके अरेस्ट करने की परमिशन दीजिए, वारंट दिए जाए, कुछ ऐसे इस फॉर्म में लगाते हैं। उन्होंने सारी इवेंचुअलिटीज इसमें लगाई है कि अगर कुछ सब्सिक्वेंटली मान लीजिए कोई केस चल रहा है और उसमें पुलिस वालों ने ऐड कर दिया 324 का था, अब 326 ऐड कर दिया उन्होंने उस केस के अंदर। अब एक्यूज को जब पता चला भी 326 ऐड हो गया उसमें, मेरे पास 324 की बेल है, तो वो एक्यूज भी सरेंडर कर सकता है कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के पास चला जाए और सरेंडर एप्लीकेशन लगा दे कि जी अब 326 लगा दी है तो मैं सरेंडर करता हूँ 326 में और मेरे को बेल ग्रांट की जाए। ये भी तरीका है, यू कैन डू दैट। यहाँ जैसे कोर्ट के नोटिस में आ गया कि अभी 326 इसमें उनके पास रिपोर्ट आ गई, तो कोर्ट के पास पावर है कि उसको अरेस्ट के वो प्रोविजन पड़ी है जो कैंसिलेशन वाले हैं, जैसे 437(5) और 439(2), उसमें लिखा हुआ है ना कि जब भी कोर्ट चाहे जिसको बेल दे रखी है तो उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर कर सकती है, री अरेस्ट किया जा करने की पावर है। तो इसलिए अगर कोर्ट के नोटिस में आ गया इसमें सेक्शन ऐड हो गया तो कोर्ट के पास दो चीजें हैं, कोर्ट बेल कैंसिल भी कर सकती है या उसको, अब जैसे 326 का लगा है तो 326 में उसको कह सकती है 326 में तेरे को अरेस्ट कर लिया, या सारी बेल कैंसिल करना चाहे तब भी कर सकती है, बट नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती। वो तो कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो तो सारी बेल कैंसिल करते हैं, अदरवाइज उसको 326 में उसको अरेस्ट कर लेंगे एंड ही विल बी सेंट इन कस्टडी। वो बेल कराए, पर वो आईओ जो पुलिस वाले हैं वो अरेस्ट नहीं कर सकते उसको विदाउट टेकिंग दी परमिशन ऑफ द कोर्ट। नाउ दिस इज क्लियर, दिस हैज बीन लेड डाउन प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये चीज आ गई है इसमें इन्होंने क्या पूछा था, यही था कि और भी था। So same thing that subsequently another offense was added. So whether he is to be ये एडिशनल है इनका, शुड ही भी, ये पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया उसको, ये कह रहे हैं ना, पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, शुड ही बी रिलीज फ्रॉम कस्टडी बिकॉज नो नोटिस वाज गिवन टू हिम बिफोर हिज अरेस्ट। ठीक है, हाँ, तो ये सिचुएशन में कह रहे हैं जब उन्होंने अरेस्ट कर लिया, हालांकि लॉ तो ये कहता है नहीं कर सकते बगैर परमिशन के कोर्ट की, अगर उन्होंने कर लिया उसको तो क्या करना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। तो इस पे ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, मनोज सुरेश जाधव JADHAV वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2019 वॉल्यूम 17 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 362। इस केस में FIR हुई 509 और 34, तो ADJ की कोर्ट से उसने बेल कराई। सब्सिक्वेंटली उन्होंने 376 ऐड कर दिया उसमें और उसको अरेस्ट कर लिया। देन ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट कैसे कर लिया, गलत किया, यू कुड नॉट हैव अरेस्टेड हिम, एंड उन्होंने कहा कि वी डायरेक्ट दैट द पिटिशनर शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल on the same conditions as imposed in the aforesaid order dated such and such by the 11th session judge। ये उन्हीं कंडीशंस पे इसको दोबारा से उसको बेल पे छोड़ दिया, सेम कंडीशन, तो ही वाज लेट ऑफ, उसको बेल के दे दी, और साथ में ये भी लिख दिया भी अगर वो स्टेट को चाहे और उनके पास रीजन हैं तो वो कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन, बट बिकॉज दे हैव अरेस्टेड हिम रॉन्गली उसको ही इज ग्रांटेड बेल ऑन द सेम कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको बेल पे छोड़ दिया। तो यू कैन डू दैट, यू कैन लीव हिम ऑन बेल
एंड अगर उन्होंने कैंसिल करानी है तो एप्लीकेशन लगाएंगे, उसको आपको कन्विंस कर पाएंगे तो कैंसिल हो सकती है, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो सकती। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Question number 40 is also somewhat similar. Accused granted bail for offences section 324, 325. Subsequently, investigating officer arrested accused for offence under section 326 IPC without permission of the court and produced him before the court with the request to send him in judicial custody. Should he be released on bail or sent to judicial custody? He should be released on bail. ठीक है. He should be Question released on bail. 40. Question number 41. What if the person was granted bail and subsequently another offence was added and accused was arrested and produced before court? Should he be released from custody? Because same question, sir. Because it was given to him before his rearrest. Question number 42. An accused was granted bail under section 324 IPC. Later on, section 326 IPC was added. Can the accused be arrested or his bail shall be cancelled? Sir, I think this query has already been addressed. Yes, there was. So moving now to question number 43. Whether a magistrate is competent to grant bail for an offence under section 326 of IPC, which provides life imprisonment and is triable by Court of Judicial Magistrate First Class. ये भी झगड़ा बहुत है। अब इसमें हमारे हाई कोर्ट की एक जजमेंट है। I could lay hand on only one judgment. वो है राम जी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। राम जी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये लॉ फाइंडर में मिल जाएगी आप, लॉ फाइंडर में। ये कुछ आईडी का भी होता है, इसमें आईडी भी लिखी हुई है, आईडी 12797 12,797 12797। तो इस जजमेंट की रीजनिंग से मेरे को तो आई एम कन्विंस्ड बाय दैट रीजनिंग, मे बी अदर पीपल मे नॉट एग्री। उसकी जो रीजनिंग है उसमें सारे ही पॉइंट्स लिए उन्होंने। एक रीजनिंग तो ये है कि इसमें पनिशमेंट तो ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 326 में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बाहर लिखा हुआ है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस में मैजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता, पर वो ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट है 326, तो मैजिस्ट्रेट तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे ही नहीं सकता। मैजिस्ट्रेट तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल पनिशमेंट दे सकता है। तो क्राइटेरिया जिस बेसिस पे ये बनाया गया कि किस केस में बेल होनी चाहिए, किस में नहीं होनी चाहिए, वो तो जितनी सीवियर पनिशमेंट है उसके हिसाब से है ना। अगर पनिशमेंट बहुत सीवियर है तो उसको एक कैटेगरी बनाई गई कि इसमें बेल नहीं होनी चाहिए, तो सेशन कोर्ट ही कर सकता है, मैजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। तो अब ये सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट कहाँ रह गई इसमें? वो तो 3 साल पे आ गया जब ट्रायबल मैजिस्ट्रेट है। एक आर्गुमेंट तो उनकी ये है इस जजमेंट में। दूसरी आर्गुमेंट उनकी ये है कि ये बेसिक लॉ है कि जो कोर्ट किसी ऑफेंस को ट्राई कर सकती है उस ऑफेंस में वो बेल भी कर सकती है। ये इस पे पेप्सू हाई कोर्ट को रिलाई किया, AIR 1953 पेप्सू, AIR 1953 पेप्सू 146। और तीसरा उन्होंने इस पे भी रिलाई किया कि ये पनिशेबल विद डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है ना, इनको इकट्ठा पढ़ा जाता। जो ऑफेंसेस में दोनों पनिशमेंट हैं वो ही इसमें आते हैं, अलग अलग वाले। जिसमें सिर्फ लाइफ है वो नहीं आएगा इसमें, वो इस लिमिटेशन में नहीं आएगा। उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन भी ली है। अब ये इंटरप्रिटेशन एक केरला हाई कोर्ट ने भी ले रखी है, और उसको वेस्ट बंगाल, मैं आपको जजमेंट लिखवा दूँ उसकी अगर आपको पढ़नी है तो। केरला हाई कोर्ट की 1981 क्रिमिनल लॉ जर्नल है, 1981 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज 1313। वेस्ट बंगाल की जजमेंट है जो वो है 1997 ऑल इंडिया क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर, पेज 154। और आंध्र प्रदेश की है ईयर 2000, पूरा 2000, वॉल्यूम 3, RCR क्रिमिनल, पेज 573।
तो ये सारी हाई कोर्ट्स ने यही व्यू ले रखी है इसमें कि ये 326 जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसमें पनिशमेंट है और ट्राइबल और मैजिस्ट्रेट, तो उन केसेस में मैजिस्ट्रेट के पास पावर है बेल करने की, ठीक है, वो कर सकता है। तो कोई कॉन्ट्ररी व्यू तो वो तो भी है, पर ये जजमेंट हैं जो ये कहती हैं भी आप कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्या? So next question, question number 44. Sir, in this case also similar query because section 409 is also punishable with imprisonment for life, but tribal magistrate of first class. उसमें 326 है, इसमें 409, यही फर्क है। Section question 45. Whether bail granted by superior court can be cancelled by the subordinate court if the accused absents from the court. So I think this also has been पहले आंसर किया था कि सुपीरियर कोर्ट की बेल आप कैंसिल नहीं कर सकते, कोई भी हो, एंटीसिपेटरी हो, रेगुलर हो। पर 446 ए जो प्रोविजन है उसमें ये है कि अगर वंस ही हैज जंप्ड बेल, फिर मैजिस्ट्रेट के पास वो डिस्क्रिशन आ जाती है कि उसको बेल दे ना दे। तो वो जो अमेंडेड प्रोविजन है उसके तहत ये इट टेक्स केयर ऑफ दिस सिचुएशन, अदरवाइज बहुत मुश्किल होती है। आगे के So the next two questions are regarding the cancellation of bail. Question number 46. How can we ascertain that the accused actually tried to influence the witnesses or tried to tamper with the evidence? हाँ, ये तो एविडेंस लेना पड़ता है आपको। इंक्वायरी है, उसमें एविडेंस आएगा, वो अगर आपको सेटिस्फाई कर पाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज। बट ये बाय प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये वाला। ये जो एविडेंस है जो लेना है आपने, टू रीच दिस कंक्लूजन कि इन्होंने विटनेसेस टेम्पर किए या नहीं, you have to rely on the principle of preponderance of probabilities, not beyond reasonable doubt. ठीक है, अगर preponderance of probabilities आपको लगता है कि इन्होंने किया है तो आप बेल कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि बेल कैंसिलेशन को तो ये बहुत सारी जजमेंट्स हैं, इसको लाइटली नहीं लेना, क्योंकि अगर एक बार ये आपने उसको लिबर्टी दे दी है तो आप यू डोंट टेक इट अवे इजीली। एंड मोर ओवर बेल ये आपका रिव्यू हो जाएगा। आपने एक जजमेंट आपने ऑर्डर कर रखा है जिसमें आपने कंसीडर करके सारा कुछ कहा भी हाँ इट इज अ फिट केस फॉर बेल, नाउ यू आर रिव्यूइंग दैट ऑर्डर, इसलिए वो लाइटली तो नहीं लेना होता। पर ये सब्सिक्वेंट अगर कंडक्ट उसका ऐसा है, उसने विटनेसेस को टेम्पर किया है, थ्रेटन किया है, तो अगर विटनेसेस को थ्रेटन किया तो कहीं ना कहीं पर्चा दर्ज कराएगा, कहीं रिपोर्ट करेगा एसपी को, कोई इंक्वायरी होगी, वो सारी चीजें आ सकती हैं आपके पास। ऑल दोस दैट मटेरियल विल बी बिफोर यू, तो आप इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं। Right, sir. So next question is, when an accused is granted bail, subject to furnishing bonds before the court, the accused furnishes the same but does not join investigation, as there is no direction of this sort in the order of the superior court which granted the bail. The challan is not presented for want of accused joining investigation. What is to be done in such a case? Whether a direction can be given to the accused to join investigation by the magistrate before whom the accused is appearing after furnishing bail bonds? इसमें तो यही है आपके पास जो रेमेडी बेस्ट अवेलेबल है कि स्टेट शुड गो टू द सेट सुपीरियर कोर्ट विद अ प्रेयर फॉर कैंसिलेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। कोई भी कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देती है उसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है कि ही विल जॉइन इन्वेस्टिगेशन। अगर बाई चांस रह भी गया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन। ये तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं कर रहा तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कैसे होगी? तो the bail is most likely to be cancelled in that situation. इसकी रेमेडी तो वही है, that is the remedy. Okay, next क्या? Next section, question 48. In 70 cases under section 138 of NI Act, the same accused was granted bail as offence being bailable. But after 1 week, accused says he be released in 70 cases on personal bond, considering him as indigent under section 436 CRPC. अब इसमें 436 में जो लिखा हुआ है ना कि अगर एक हफ्ता वो बेल नहीं दे पाता तो वो इंडिजेंट उसको मान लेते हैं। हाँ, ये नहीं लिखा हुआ कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट ही इज इंडिजेंट, ये तो नहीं लिखा हुआ।
हाँ ये लिखा हुआ है कि ये सफिशिएंट ग्राउंड है कोर्ट के लिए फॉर अज्यूमिंग दैट द पर्सन इज इंडिजेंट। दोनों चीजों में फर्क है। ये नहीं उसमें लिखा कि अगर वो एक हफ्ता रहेगा तो देन द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट ही इज इंडिजेंट, ये नहीं कहा। ये कहा है कि वो सफिशिएंट ग्राउंड बन जाता है कोर्ट को प्रिज्यूम करने के लिए, अज्यूम करने के लिए। assumption है ना आपकी, presume means to assume something without taking proof। presumption का मतलब क्या होता है? presumption means to assume something without taking proof of it। तो आप उसको ये presume कर सकते हो कि ये इंडिजेंट, आप कर सकते हो, it will be a sufficient ground। अब इस केस के अंदर जो 70 केसेस हैं जिसके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, इसका मतलब 70 चेक उसने काट रखे हैं। 70 चेक काट के सब में उसने ये कह रखा है कि भाई हाँ मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, मेरे बैंक में इतने पैसे हैं। तो उसको इंडिजेंट कैसे हो गया? वो इंडिजेंट तो बनता ही नहीं हो। ही कांट से दैट ही इज एन इंडिजेंट पर्सन। उसको तो अगर वो 70 केसेस में अगर वो सारे डिसऑनर हुए हुए हैं तो वैसे 420 हाथ लगनी चाहिए उसके हर केस में। ही इज द बिगेस्ट फ्रॉडस्टर जो 70 चेक्स काट चुका है, 70 के 70 केसेस में डिसऑनर हो रहे हैं चेक उसके। तो ये तो नहीं बनता वो केस इंडिजेंट हो, did not that case। All right, ma'am। So question number 49, whether one and the same person can be allowed to stand surety in more than one case। हाँ इसमें तो कोई बात तो नहीं है। एक अगर आदमी के पास बहुत सारी जायदाद है, ही इज अ रिच मैन, तो अगर 2 केस में 3 केस में बेल ही वांट्स टू स्टैंड एज श्योरिटी, प्रोवाइडेड कि उसको जो, क्योंकि अब तो उसमें एफिडेविट का प्रोविजन है ना, उसको एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। तो एफिडेविट में उसको लिखना पड़ता है कि मैंने किस श्योरिटी दे रखी है। उसमें सारी डिटेल लिख दे कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैंने इस केस में ये इतने अमाउंट की दी है, इसमें इतने की दी है, इतनी दी है। तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है तो ले सकता है, उसमें क्या क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन, उसमें कोई बात नहीं। Right, sir। Question number 50, wherein under trial who was PO earlier has been granted bail but is unable to furnish bail bond and surety, but moved an application to accept personal bond only, should he be released after accepting personal bond? Why? ये तो मेरे का थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल ज्यादा। अब पीओ के केस में ये तो सेटल्ड लॉ है कि इसको नॉर्मली बेल इज टू बी ग्रांटेड, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है बहुत सारी जजमेंट्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है क्या? इज देयर एनी जजमेंट व्हिच से दैट नॉर्मली एंटीसिपेटरी बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड टू ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? यही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन? So थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, क्योंकि क्या? फर्स्ट में क्वेरी है कि whether he can move an application to the court for acceptance of personal bond हाँ only। पर्सनल बॉन्ड के लिए, हाँ यस है, फिर दोनों पीओ के बारे में ही है। अच्छा, ये दूसरा पीओ की जजमेंट पूछ रहा है ना, ये बोले क्या जजमेंट है क्या? जजमेंट तो ये लिख लो, ये एक तो है लवेश LAVESH लवेश वर्सेस स्टेट 2012 वॉल्यूम 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 730। और एक और है स्टेट ऑफ MP स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा। इसकी साइटेशन मेरे पास मिसिंग है कहीं पे, मिल जाएगा ये भी, इसके आसपास का ही है ये भी केस, ज्यादा दूर का नहीं। तो ये दोनों केसेस में ये लिखा हुआ है नॉर्मली बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। अब ये जो प्रोपोजिशन आपने 50वीं पढ़ी है, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अगर हमने बेल दे दी, हाँ नॉर्मली हम बेल नहीं देते, पर मान लीजिए उसने सारी चीजें ऐसी दिखा दी जिसमें हमें ये कन्विंस हो गया कि ये तो बेल, इसमें पीओ का ऑर्डर ही गलत है इसमें बिल्कुल। मान लीजिए इसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि ये पिछले 3 साल से मैं USA में रह रहा हूँ और ये प्रोक्लेमेशन यहाँ ये इस गाँव मेरे ये यहाँ जाती रही है और मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार मेरा यहाँ रहता नहीं है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे खिलाफ केस चल रहा है?
तो यहाँ इन्होंने भेज के फ्रॉड से मेरे को पीओ डिक्लेयर करवा दिया। ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरे पेपर्स हैं सारे के सारे, जिनमें देख लीजिए मैंने कभी यूएसए से बाहर गया नहीं, वहीं रह रहा हूँ, वहाँ इन्होंने भेजा नहीं। कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसा मटेरियल आ जाता है कि यू आर कन्विंस्ड के ये पीओ तो गलत इसको कर रखा है, और ऑफेंस आपको लगता है कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है जिसमें आप बेल कर सकते हैं, उसके बाकी सारे कंसिडरेशंस को देखते हुए यू ग्रांटेड बेल। तो अब ये डिपेंड करेगा आपके उसको बॉन्ड पे छोड़ना है या नहीं छोड़, पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। ये तो वही चीज़ है ना उसमें कि चांसेस ऑफ एब्सकॉन्डिंग देखने आपने कि कितने चांसेस हैं ये आदमी पेश होता रहेगा, नहीं होगा, क्या इसका एंटीसीडेंट्स क्या है, इसकी रूट्स इन सोसाइटी क्या है, इसका क्या चीज़ें हैं। तो वैसे नॉर्मली तो क्योंकि हमने कहा ना पीओ को वैसे बेल ही नहीं मिलती, तो अगर पीओ को बेल ही नहीं मिलती तो उसको बॉन्ड पे छोड़ने का वैसे तो क्वेश्चन अराइज नहीं होता। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस। कोई केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप यू आर टोटली कन्विंस कि पीओ गलत हुआ है और ये केस भी कुछ नहीं है, इसमें तो ये आदमी इसकी इतनी लैंडेड प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी है, ये तो 50 एकड़ जमीन यहाँ है इसकी, ये जाएगा कहाँ पर ये, और ये इसके ये पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, इसके वो रहते हैं। कई चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप सोचो कि हाँ बॉन्ड पे भी छोड़ा जा सकता है। थ्योरेटिकली यस इट कैन। जजमेंट हम 51 की अपने बता दी, जजमेंट्स वाली बात। So next question number 52. If the accused surrenders before a duty magistrate in a bailable offence and duty magistrate releases them on bail without the issuance of notice to investigating officer, thereafter investigating officer moves an application before the area magistrate for formal arrest of the accused. That application was rejected. Whether the order is correct? क्या दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी नहीं है इसमें, जरूरी नहीं होता अरेस्ट करना उसको एक्यूज में। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें 302 केसेस में भी आप सीबीआई के कितने केसेस मिलेंगे आपको जिसमें इसमें 302 में भी अरेस्ट नहीं करते। तो ये तो बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस में तो अगर उसको कर दिया तो उसमें क्या दिक्कत। बल्कि अवनेश कुमार आ रहा है जो 7 साल तक का कहता है कि 7 साल तक के केसेस जो है उसमें आपने अरेस्ट नहीं करना, यही कह रहा है ना वो अवनेश कुमार। तो अगर करना है तो आपको ये सारा कुछ ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को। अगर गलत करोगे तो आपके खिलाफ कंडेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी चल सकती हैं। तो यहाँ तक है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अगर अवेलेबल ऑफेंस में अगर उसको फॉर्मल अरेस्ट किस लिए करना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका करने। तो अगर उसने जो ऑर्डर किया डिक्लाइन का तो ठीक किया, नथिंग रॉन्ग विद दैट। Question number 53. Whether police custody can be ordered if facts of the case so demand in a bailable offence on the same analogy as that of anticipatory bail? नहीं, पुलिस कस्टडी बेलेबल ऑफेंस में नहीं की जा सकती किसी फॉर्म में भी, कोई भी कंडीशन नहीं इम्पोज की जा सकती किसी फॉर्म में भी बेलेबल ऑफेंस पुलिस कस्टडी है। ओके, क्या नेक्स्ट ईयर? Next question. Question 54. Is it necessary to file bail application by juvenile in a murder case, or is it the duty of the judge to offer bail? अच्छा, जुवेनाइल एंड मर्डर केस। अब जुवेनाइल को जो लॉ है 7 साल या उससे ज़्यादा वाले ऑफेंसेज हैं उनमें अप्रीहेंड कर लेते हैं, उसको करते हैं। उससे नीचे वाला में तो अप्रीहेंड भी नहीं करना होता, उसमें अप्रीहेंड करते हैं उसको। देन ही इज नॉट टू बी पुट इन एनी फैटर्स, कोई हैंडकफ नहीं, कुछ नहीं लगाना, इसको थाने में नहीं रखना, जेल में नहीं रखना उसको, और नेक्स्ट डे उसको विदिन 24 आवर्स आपको बोर्ड के सामने पेश करना है। जैसे ही बोर्ड के सामने पेश होता है तो बोर्ड इज टू मैंडेटरी है उसको बेल, जो सेक्शन 12 है शायद मेरे ख्याल, बेल आपने उसको ग्रांट करनी होती है अनलेस वो 3 कंडीशन हैं जिसमें अगर उनमें ना फॉल करता हो। अगर वो 3 कंडीशन में ये लाइकली टू कम इन कंटैक्ट विद बैड एलिमेंट्स जो हैं, या उसके लिए साइकोलॉजिकली ठीक नहीं रहेगा, या ये तीसरा एक और है डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो अगर ये कंडीशन नहीं है तो उसको बेल मिलती है, ही गेट्स बेल।
अगर इन तीनों में नहीं फॉल करता है। और अगर नहीं भी मिलती हो तब भी उसको जेल में नहीं डालना, उसको ऑब्जर्वेशन होम में या कहीं रखना होता है। तो इसमें कहीं एप्लीकेशन का तो कोई है ही नहीं इसमें कि एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उसको क्या करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन था ना, इज इट नेसेसरी टू फाइल बेल एप्लीकेशन और इट इज द ड्यूटी ऑफ जज टू ऑफर बेल। हाँ, इट इज द ड्यूटी ऑफ द जज टू ऑफर बेल, तो करेगा। ये सारा उसके ही है, प्रो जुवेनाइल ही है। और अगर मैजिस्ट्रेट के सामने भी पेश कर देते हैं उसको जुवेनाइल को, मैजिस्ट्रेट को भी उसी टाइम अगर वो डिसाइड करना पड़ता है एंड इट अपीयर्स कि वो जुवेनाइल है तो उसको भेजना पड़ता है कोर्ट के पास। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? Right, sir. Next is question number 55. Generally, first remand of POCSO Act comes to magistrate court. Can he be granted bail under section 12 of POCSO Act on finding it is a suitable case for bail? No, he cannot. POCSO Act में कोर्ट के पास कोई, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है। उसकी कॉग्निजेंस जो डायरेक्टली स्पेशल कोर्ट लेती है उस ऑफेंस की, उसके पास तो सिर्फ 167 में तो किसी के पास, किसी मैजिस्ट्रेट के पास भी पेश कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास भी पेश कर सकते हैं। वो तो 167 का वो प्रोविजन है, उसमें कोई कॉग्निजेंस वाली बात नहीं है, कोई पावर नहीं है उसमें अदरवाइज। तो वो इसलिए वो जो पावर है सिर्फ स्पेशल कोर्ट के पास है। मैजिस्ट्रेट बेल एप्लीकेशन बिल्कुल एंटरटेन कर सकता है इसके लिए। और इस पे एक जजमेंट भी है इस पे जो डायरेक्टली इसी पॉइंट पे है, वो कलकत्ता हाई कोर्ट की है। अननोन वर्सेस धनंजय, DHANAN धनंजय सिंह। ये 2015 की है, 8 अप्रैल 2015 की है ये जजमेंट। काफी अच्छी जजमेंट है, बिल्कुल क्लियर ऐसी पॉइंट पे लिखा हुआ है, इसलिए रजिस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। और क्या है नेक्स्ट? Question number 56. So far as section 389 subsection 3 CRPC is concerned, if accused is convicted for a sentence of more than 3 years to run consecutively, then can't he be granted bail by magistrate in any case, and he has to be taken into custody by magistrate and sent to jail immediately to undergo the sentence? 389(3) में दो सिचुएशन होती है, एक है बेलेबल ऑफेंसेस के लिए, एक नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए। अगर तो ऑफेंस जो है वो बेलेबल है, इफ द ऑफेंसेस आर बेलेबल, जिसमें उसकी कन्विक्शन हुई है, तो वो 3 साल से एक्सीड भी कर जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6, शायद 6 तक तो हो ही सकता है। तो वो एक्सीड कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ही स्टिल एंटाइटल्ड टू बेल 389(3). और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में 3 साल से अगर एक्सीड कर जाएगा तो बेल नहीं मिलेगी उसको, सिर्फ 3 साल तक ही है लिमिटेशन, और कोई प्रोविजन नहीं। सो दिस इज द ओनली प्रोविजन जिसके तहत उसको जो ट्रायल कोर्ट है वो बेल दे सकती है। ट्रायल कोर्ट का जहाँ तक पावर है वहाँ तक तो यही है, बेलेबल ऑफेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन बेलेबल में प्रॉब्लम है। 3 साल से अगर ऊपर है तो ही कांट बी ग्रांटेड, ही विल नॉट बी ग्रांटेड बेल बाय द मैजिस्ट्रेट। ओके, हाँ जी, लास्ट है ये क्वेश्चन। So the last question is question number 57. Does principle of preponderance of probabilities apply in criminal matters? हाँ, of course it applies। अभी हमने ये डिस्कस किया था कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए, कि कैंसिलेशन ऑफ बेल पे उन्होंने पूछा था भी कैसे डिसाइड करेंगे भी उसने विटनेसेस को थ्रेटन किया। तो जो इंक्वायरी करोगे उसमें, वो इंक्वायरी जो है आप डिसाइड प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के बेस पे करोगे, नॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। तो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला आता है, कम्स इनटू प्ले, बहुत है। ऑलराइट, मेरे ख्याल हमने टाइम तो बहुत ज़्यादा 1 बज गया तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन और होंगे तो वो लिख के भेज देंगे। देन द अकेडमी कैन कंसिडर के और होना चाहिए वेबिनार या नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल तो सर काफ़ी हमने वी हैव ट्राइड टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो ओके, Sir,
on behalf of all the judicial officers of the state of Punjab, Haryana and UT Chandigarh, extend heartfelt thanks to the respected sir for so patiently answering all the queries. I hope all the questions have now been answered, and as sir just now said, if any query remains, you can send it, and so we can further see whether it requires further deliberation on this. Thank you so much for attending this webinar. Namaskar. Okay, thank you everyone. Thank you.